Thank you so much, everyone, for joining on a Saturday evening. And I'm sure you're going to get a lot of insights what to do after your CA exams are over, on whether to become a content creator, whether to become a faculty, whether to go for a job, or whether to start something of your own. So this is going to be very helpful for all of you, I'm pretty sure. And we have three renowned speakers: Sakshi Jain, who's a content creator on Instagram; Sharad Malpani, who's doing a job at an early stage startup. Prior to this, he was at BCG; and Atul, who will soon be joining us. He's a very renowned faculty. So firstly, thank you so much, Sharad and Sakshi, for joining in. It's an absolute honor to host you in this webinar. Thank you so much. Sorry, my voice is just guys मतलब थोड़ा सा गला खराब है तो please manage. Yeah, sure. I think it's because of creating a lot of reels, is it? Also because of cold. Oh, okay. Like we are glad that you're here. So please take care. And Atul is also joined in. So thank you so much, Atul and Sharad, for joining in. It's going to be super fun. Thanks a lot, Kushal. Looking forward to interacting with everyone. Perfect. All right, so I think we can start off with a quick round of introduction. Guys, we'll keep the structure very simple, and we'll be doing a panel discussion for the next 1.5 hour, and then we'll take all your questions towards the end. So please feel free to type your questions in the chat box, and we'll take all of them. So maybe we can do a quick round of introduction. We can begin with you, Sakshi, then Sharad, and then Atul. Okay, first of all, thank you guys for joining in on a Saturday night. Instead of partying, you're attending this session right now. So I cleared my CA exams in November 22, and after that I worked in Aditya Birla, and now I'm working as a content creator on Instagram. I create content on Instagram, and I basically make content related to personal finance right now. Got it. Perfect. Also, guys, one rule or maybe one simple thing is that you have to tell something which is not there in your resume. ये जो introduction था ये बहुत resume oriented introduction था जो job में applicable होगा, but this is a fun webinar, so we also want you to tell कि what is one thing which is not there in your resume, anything. So Sakshi, go for it. Okay. See, abhi introduction. I think I don't know what to add. I can't think of anything ठीक to है. add right now. So शरद को बहुत आता है ये सब, तो शरद add कर देगा and then you can follow him. Sharad, go ahead. Sure. Hello, everyone. My name is Sharad Malpani. I am from Pali, Rajasthan, but have been living in Mumbai since 2018. I went there after my IPCC for the articleship, and then post clearing, I have been there only. So, did my articleship from KPMG in corporate taxation department. Then, after clearing, I got a rank and applied for various jobs, but finally got one to BCG. Worked there for close to 2 years, and then recently I have made a switch to a startup. Because at the end of the day, I want to do something of my own. So sort of wanted to learn how things are done on ground. So right now I'm working in a startup, and now off the resume, I write poems, and Wow. I love partying. Uh, Friday or Saturday night, you will see me in a club or at a restaurant or doing a house party. अभी तो मैं घर पे हूँ तो थोड़ा शांति and sober. So yeah. Got it. So do you have any poem which is handy, by the way? People would love to see that side of you as well. अभी एकदम start में नहीं करता हूँ. Towards the end of the session we can do. ठीक है. I have a lot of them handy. ठीक है, चलेगा. So end में कर देंगे, ठीक है? So guys, make sure you're till the end to listen to Sharad's poem. So now we have like a celebrity faculty of India, Mr. Atul Agarwal, who needs no introduction, and in the chat box we can see the fan following which he has. So Atul sir, actually आपको introduction की जरूरत तो नहीं है, but quickly 1 minute में बता दो आप क्या करते हो, and then we can delve deeper. नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो जैसा कि मैंने CA 2018 में किया था क्लियर, उसके बाद डायरेक्ट मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। 2018 में मई 18 अटेम्प्ट था, तो शायद हाँ जुलाई में रिजल्ट आया था। 4-5 महीने तो मेरे इंटरव्यूज वगैरह में निकल गए थे। उसके बाद से नवंबर या दिसंबर में मैंने मेरा पहला बैच स्टार्ट किया था। इंटरनेशनल टैक्सेशन सब्जेक्ट होती थी पेपर 6 से इलेक्टिव। तो पहला बैच था इंटरनेशनल टैक्सेशन का। फिर दूसरा बैच मैंने लिया मेरा ऑडिट का। इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो बैच था, पहला बैच था मेरा, तो उसमें बच्चे थोड़ा सा उनको लगा कि मैं काफ़ी फास्ट पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा उन्होंने मेरे को क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला था जहाँ मैं पढ़ा रहा था कि इनको बोलो थोड़ा स्लो पढ़ाएं। तो फिर मेरा जो ऑडिट वाला बैच था वो काफ़ी अच्छा चला था वहाँ पे। उसके बाद मैंने DT पढ़ाया था, और उसके बाद SCMP। तो 4 सब्जेक्ट मैंने वहाँ पढ़ाई थी। उसके बाद मैंने जब मेरा खुद का स्टार्ट किया कोरोना में, कोविड स्टार्ट हुआ था तब, तो पहली सब्जेक्ट मेरी स्टार्ट की थी मैंने SCMP
और दूसरी डीटी स्टार्ट की थी। ऑडिट में स्टार्ट करने वाला था तब, पर क्या था, इतने सारे स्टूडेंट जुड़ गए थे तो उनको संभालना भी काफी भारी काम था, क्योंकि इतना मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी हजारों में स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। मेरा पहला बैच था SCMP का, जिसमें लगभग 4-5 महीने के अंदर ही मेरे जो क्लास स्टूडेंट थे वो 5,000 क्रॉस हो गए थे लगभग। तो मेरे को तब मेरा लगा था कि ऑडिट स्टार्ट कर दूंगा मैं 1-2 महीने में, पर फिर उनके इतने डाउट्स वगैरह, क्योंकि पहला ही बैच था ऑनलाइन वाला, तो डाउट्स वगैरह हैंडल करना, तो इस कारण तब मैं ऑडिट स्टार्ट नहीं कर पाया था, जो अभी तक पेंडिंग चल रही है। अभी भी बच्चे पूछते ऑडिट कब आएगी, ऑडिट कब आएगी। तो अब जाके तो बुक आई है उसकी ऑडिट की, अब हाँ। देखते हैं क्लास का कब होता है। अभी भी वही डाउट्स वगैरह, इस चक्कर में ऑडिट स्टार्ट ही नहीं हो पाया। नवंबर में था प्लानिंग, नवंबर में प्लानिंग था कि बैच स्टार्ट हो जाएगा, अब आ गया जनवरी, अब फरवरी का। अब फरवरी में पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे पहले सोचते हैं कि चलो मैनेज कर लेंगे, फिर वो बच्चे बढ़ जाते हैं, फिर वो मैनेज नहीं हो पाते। तो जो एक्सपेक्टेशन होती है उसी को क्रॉस कर जाते हैं हम। जैसे मैंने बुक्स की पहले प्लानिंग करी थी कि इस बार चलो मैं छपाऊंगा एक क्वांटिटी में 20,000 बुक हर सब्जेक्ट। प्लानिंग कर ली थी नवंबर में कि 20,000 बुक तो मेरी आराम से 6 महीने चल जाएंगी। पर इस बार जो रिस्पॉन्स आया तो 1 महीने में सारी खत्म हुई, तो वापस छपानी पड़ गई। हम्म। और फिर वही डाउट से डाउट, डाउट्स डाउट्स। तो इस राइट। चक्कर में मेरे जरूर कुछ कुछ बैच डिले हो जाते हैं, तो बच्चों को भी काफी थोड़ा दुख होता है कि चलो अभी ऑडिट स्टार्ट नहीं हो पाई, ऑडिट स्टार्ट नहीं हो पाई। अभी बस यही मैसेज चल रहा है। अगर मैं मेरा व्हाट्सएप दिखाऊं, हम्म। लगभग टोटल मैसेज है, कब ऑडिट स्टार्ट होगी, कब आईएएस स्टार्ट होगी। सबको इसीलिए एक्सपेक्टेशन इसीलिए चल हमारे रहा मैसेजेस को आप रिप्लाई नहीं करते हो, क्योंकि बच्चों के इतने मैसेजेस आते तो है। आपका तो हमारा पिन कर रखा है मैसेज। मैंने मैसेज, आर्काइव में डाल रखा, आर्काइव में जो वैसे खास मैसेज होते हैं सब आर्काइव में है। अरे वहां ओपन में रखूंगा तो रिप्लाई नहीं हो पाएंगे, वो सब अच्छा। आर्काइव में जाते हैं सीधे मैसेज, राइट, राइट। रिलेटिव के या दोस्तों के। राइट। नहीं, बट थैंक यू सो मच अतुल फॉर ऑल्सो ज्वाइनिंग इन चैट बॉक्स में। तो हमको दिख ही रहा है कि आपकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, एंड लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग दैट ओके, एक का मैं कमेंट पढ़ा दैट ही हैज क्लियर्ड आफ्टर 14 अटेम्प्ट्स बिकॉज ऑफ यू, सो व्हिच इज लाइक अ कमेंडेबल, वेरी गुड थिंग। सो वेरी प्राउड ऑफ योर वर्क एंड वेरी इंस्पायर्ड बाय योर एंटायर स्टोरी। सो इट फील्स गुड दैट यू हैव जॉइंड इन एंड यू आर गोइंग टू इंस्पायर एवरीवन हु हैव जॉइंड इन। सो बहुत सारे डाउट्स है लोगों के ऑन टीचिंग बिजनेसेस एंड हाउ टू स्टार्ट एटसेट्रा। सो मे बी guys we can begin the panel discussion. So first let's talk about how did you guys decide what you wanted to do. तो एक बार तुम्हारा मतलब जो जर्नी है राइट आफ्टर सीए, एक बार जस्ट कवर अप ऑन दैट, हाउ आर योर लेट्स से इंटरव्यूज इन कैंपस प्लेसमेंट्स, और हाउ डिड यू डिसाइड वेदर यू वांट टू डू अ जॉब, कंटेंट और फैकल्टी, एंड आई आल्सो ऐड अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस, एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड. So probably again Sakshi, Sharad, Atul will follow the same format. Of course, feel free to chip in between, and then let's cover your entire journeys. How did you decide what you wanted to do ultimately? Okay, thank you. So basically ना November 22 में, should I continue in English or? Yeah, sure. So I cleared in November 22. उसके after that I started मतलब my results came on January 10th. तो 20th के आसपास I started looking for jobs. मतलब made my LinkedIn profile. उसमें I started reaching out people for like reference and everything. Reached out to my relatives कि अगर they had any reference and all. And then off campus I started applying. क्योंकि हमारे टाइम पे शायद कैंपस स्टार्टेड अ बिट लेट या फिर वैसे कुछ था, तो ऑफ कैंपस आई स्टार्टेड अप्लाइंग. ऑफ कैंपस में आई एड स्टार्टिंग में तो आई एक्चुअली ना मतलब सबका सुन के आई स्टार्टेड अप्लाइंग इन जितने कंपनीज दिख रहे हैं सबके वेबसाइट पे जाके अपना रेज्यूमे अपलोड कर देना. बट आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड थिंग विच यू शुड डू. मतलब वो कभी फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में ऐसा होता था कि किसी एक अच्छे कंपनी में आई अप्लाई पोर्टल के थ्रू एंड देन आई गॉट अ गुड रेफरेंस उस कंपनी में, तो फिर मेरा वैसे उस कंपनी में वो चांस कम हो जाता था. उस एट दैट टाइम आई थॉट कि मेरे को आई गो फॉर अ जॉब, बट मेरे को जॉब बहुत टाइम के लिए नहीं करना है. सो लाइक आई डू अ जॉब फॉर 6 to 7 months एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आई फिगर आउट कि मेरे को कैसे कंटिन्यू करना है. सो ऑफ कैंपस आई स्टार्टेड अप्लाइंग. तो आई स्टार्टिंग में 10-15 days आई डिड नॉट गेट मच रिस्पॉन्स. मेरे को लग रहा था कि मे बी रेज्यूमे में कुछ प्रॉब्लम है ऐसे कुछ. बट देन नौकरी में अपडेट करके वो आई स्टार्टेड गेटिंग रिस्पॉन्स. तो आई सैट फॉर सम इंटरव्यूज एंड देन आई थिंक मतलब सब इंटरव्यू में एक चीज होता है कि यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट. तो इंटरव्यूज ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो गए थे. आई हैड एन ऑफर ऑफ कैंपस 5-6 कंपनी से. मतलब उसमें से आई हैड एन ऑफर पीडब्ल्यूसी से. मतलब आई थिंक पीडब्ल्यूसी बहुत ज्यादा उस समय हायर कर रहे थे, तो पीडब्ल्यूसी के 3-4 कंपनीज आई हैड एन ऑफर. फिर ऐसे काफी सारे कंपनीज थे. then I thought कि on campus में I shouldn't apply, क्योंकि off campus I had a offer of Aditya Birla. तो basically I उस समय से I was कि मेरे को सब I had to do something of my own. एक
कुछ भी जिसमें नहीं होता है कि मेरे को जॉब की तरफ उतना ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं था। तो फिर ये आदित्य बिरला वाज अ मैन्युफैक्चरिंग वाला चीज, तो आई थॉट कि आदित्य बिरला आई ज्वाइन, तो मेरे को थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोजर मिल जाएगा, इसीलिए ऑफ कैंपस में आदित्य बिरला आई ज्वाइन। ऑन कैंपस आई डिड नॉट सिट फॉर एनी इंटरव्यू। अब उसके बाद आई ज्वाइन द कंपनी, इट वाज इन बैंगलोर, आई ज्वाइन Yeah, द कंपनी। before that, can you talk about your interview experience also and what was the role there? ओके हाँ, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस में ऐसा था ना कि मतलब सी आई व्हाट एक चीज मेरे को समझ में आया ना कि इंटरव्यू, एक तो आप अगर अपना सिलेबस से थोड़े बहुत थोरो हो कि आपको या ऐसा आप रीसेंट वाले चेंजेस से अपडेटेड हो, मतलब जैसे इनकम टैक्स में भी कुछ चेंजेस आए हैं, अगर आपको इनकम टैक्स के लिए अप्लाई करना है आप उसमें अपडेटेड हो, कोई भी चीज में आप अपडेटेड हो ना, तो आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू प्रेजेंट योर सेल्फ प्रॉपरली। अगर आपको कुछ आंसर्स नहीं भी आता है ना, बिकॉज आई नो कुछ कुछ इंटरव्यूज में आई आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आई कुड आंसर ओनली 2, लेकिन आई न्यू कि आई वाज कॉन्फिडेंट एंड यस हाउ डिड आई हैंडल द अदर 3 क्वेश्चन, आई न्यू आई डिड इट प्रॉपरली, इसलिए आई गॉट सिलेक्टेड। लेकिन एक इंटरव्यू में उस इंटरव्यू में आई न्यू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बट आई वाज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेकंड इंटरव्यू था, वो एक इंटरव्यू था जिससे मेरे को कॉल नहीं आया। वैसे वो फर्स्ट या सेकंड जो इंटरव्यू था वो एक इंटरव्यू था जिसमें बिकॉज आई वाज लुकिंग वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, और बहुत ज्यादा एक होता है ना कि मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, तो इंटरव्यूज के लिए वैसे करके वो हुआ था। बाकी द रोल इन आदित्य बिरला वाज, मतलब मैंने ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं करके रखा था टू बी ऑनेस्ट कि मेरे को बहुत टैक्सेशन में ही जाना है, बिकॉज आई एक्चुअली वांटेड बस एक कॉर्पोरेट एक्सपोजर 6 मंथ्स के लिए, तो बहुत वो सेलेक्टिव नहीं था कि टैक्सेशन जाना है या फिर किस में जाना है। तो इसमें आई हैड ऑफर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, जहाँ आदित्य बिरला वाज गोइंग टू कम अप विद अ न्यू कंपनी देयर सब्सिडियरी, तो उनका फाइनेंस इन जनरल बहुत एक स्पेसिफिक रोल नहीं था। तो इन जनरल गवर्नमेंट अगर कोई एक दो गवर्नमेंट स्कीम्स थे उस टाइम, उस पर कैसे अप्लाई करना है, बजटिंग एंड एवरीथिंग वैसे कवर्ड था। तो ऑल टुगेदर मेरे को वर्क समझ में आया, बहुत मोनोटोनस नहीं लगा, तो आई थॉट ऑफ ज्वाइनिंग आदित्य बिरला। आई ज्वाइंड ऑन 15th March, 15th March वाज माय फर्स्ट डे। फिर उसके बाद सिंस इट वाज, आई डिड नॉट एक्चुअली चेक कि वो फैक्ट्री लोकेशन है तो कहाँ पे है, बहुत ज्यादा बस आदित्य बिरला ब्रांड देख के आई ज्वाइन। तो वहां जाके मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगा कि बिकॉज इट वाज अ फैक्ट्री लोकेशन, तो मेरे को बहुत ज्यादा Where was the factory? बैंगलोर में ही था, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ऐसा नहीं था कि लोकेशन बहुत वो है, मतलब एरिया खराब है, वैसा नहीं था, बस इट वाज अ फैक्ट्री लोकेशन, तो यू नो ना, मतलब लिमिटेड 15 to 20 एम्प्लॉइज थे पूरे कंपनी में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऐसे था। तो देयर वर नॉट मेनी पीपल, एक कॉर्पोरेट कल्चर वाला चीज नहीं था, तो मेरे को थोड़ा सा डेवलपमेंट चाहिए था एंड थोड़ा एक्सपोजर चाहिए था, इसलिए आई ज्वाइन कॉर्पोरेट, मतलब इसके लिए। तो 3 months वहाँ काम करने के बाद आई गॉट अ गुड एक्सपोजर, ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ फायदा नहीं हुआ। एनीवेज मतलब मेरे को मैन्युफैक्चरिंग का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला, हाउ डज बिजनेस वर्क ये सब। बट देन 3 months में हम एकदम आई लिटरली गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि भाई नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे। तो फिर आई What was थॉट the कि salary that you were getting at Aditya Birla Group? दैट वाज 11 6, Okay, got it. देयर वाज नो वेरिएबल कंपोनेंट उसमें। तो आई मतलब तो द थिंग वाज, फिर आई थॉट कि 3 months हो गया, आई शुड रिजाइन। तो 15th June को आई रिजाइन, so I worked there for exactly 3 months. Okay. Is it getting very long? मतलब नहीं, not at all. Yeah. हाँ, तो फिर 15th, so I came back home and actually I did not tell my parents कि I was coming back home, because मम्मी पापा को कैसे बोल दे कि I am just leaving my job and I have no other options in hand. So but I came home and then I thought, then I started mentoring CA students, थोड़ा plan ahead I started. तो I thought कि ड्यूरिंग द टाइम मेरे को आगे और भी नहीं समझ आया, तो आई कंटिन्यू दैट कि मेरे को भी थोड़ा सा, हम भी अपने ब्रश अप हो जाएंगे, हाउ टू कन्वर्स विद पीपल, लोगों के भी हेल्प हो जाएगा, एंड देन हो सकता है इसी साइड मेरे को आगे कुछ जाके करना हो। तो Right. आई वाज कंटिन्यूइंग विद दैट। ड्यूरिंग दैट थोड़ा कैमरा फ्रेंडली हो गया मैंने, वो स्टार्टेड कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा टू शो हाउ डज दैट प्लानर वर्क एंड एवरीथिंग। उस टाइम आई थॉट कि मे बी कंटेंट क्रिएशन, मतलब कंटेंट क्रिएशन को एक ट्राई देना चाहिए, बिकॉज द थिंग वाज आई वांटेड टू बिल्ड अ पर्सनल आइडेंटिटी, मेरे को कुछ अपना करना था। तो कंटेंट क्रिएशन मेरे को सब सारे चीज को सेटिस्फाई कर रहा था, एंड आगे अगर बिजनेस भी करना है तो एनीवेज कंटेंट क्रिएशन वुड हेल्प मी टू बिल्ड अ नेटवर्क, एक
पहले से ही वो एक बेस रेडी करने में हेल्प करेगा. Right. देन आई थॉट कि हाँ कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे, एंड देन कन्विंस माय पेरेंट्स कि 6 मंथ्स दे दो कि आई ट्राई दिस, नहीं हुआ तो एनीवेज जॉब इन एन ऑप्शन. क्योंकि Right. एवरीवन नोज कि एक बार सीए कर लो तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा. मतलब ऐसा है कि हो सकता है आपको बाद में पैकेज थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट इट्स नॉट लाइक आप घर पे बैठे हो आप कुछ नहीं करोगे, वो चीज नहीं है. तो एक उसका वो कॉन्फिडेंस था, वो सीए करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आया. अभी भी पीपल आस्क मी कि आप कंटेंट क्रिएशन करना तो पहले क्यों नहीं स्टार्ट की, बट मेरे को ना कॉन्फिडेंस सीए करने के बाद ही आया है. बिना सीए के आई कुड नॉट have started even content creation. Yeah, I agree. I think even for me, right, like content creation was like a side gig always, but because of CA, the confidence that you get apart from that, I think it's because of the patience and disciplined approach which CA curriculum taught me, made me like a content creator per se. Like, although I don't think I'm a content creator, but it's just that कि वो एक Instagram, YouTube and LinkedIn का शुरू हो गया था presence. So I can resonate to you when you say that. Of course, like we'll talk about how much you charge to the brands and all at a later part of the conversation. But before that, maybe Sharad, over to you. Your corporate experience and the interview experience, and then अतुल के भी BPCL, ONGC के interviews के बारे में जानेंगे अपन. Yeah, so firstly to start with कि why I decided कि job ही करना है. So after clearing, there are 2-3 main options that you have in hand. One is you go for a job at the existing Big Four and at or the CA firm where you are doing your articleship, and वहीं पे convert करके you can continue working. That is the easiest option that you have in hand. Second is कि you can think of starting your own practice. किसी और relative का practice है, family में किसी का practice है, आपस में you friends want to start a practice, that is an option. Third is you want to switch to the corporate world. वहाँ पे you want to do a job in an MNC, in a big corporate house or something like that. फिर then there are options कि CA तो हो गया, हम MBA भी कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे. And then there is an option, अगर you have any idea, you can start your startup, or like Atul did, you can start teaching. So these were the options that I had in my hand. Now I evaluated each of them one by one. So teaching, You also had an option of becoming a poet, right? You didn't mention that. नहीं तो पर थोड़ा पैसा भी चाहिए ना. Okay. Go ahead. So this is a side gig, and उसमें I do not think कि मेरे पास अभी उतना confidence है जैसा आप दोनों के पास है to start it पूरा एकदम. So that is something which I do as a hobby to sort of pleasure myself, and बाकी ऐसा कुछ नहीं. So teaching, I have a knack of teaching. मैं 12 से 10 से पढ़ाते आया हूँ. So I have that plans कि down the line कभी जाके कुछ ना कुछ पढ़ाऊंगा. But at the moment that was not the only objective. I wanted to do something in the corporate world. Then CA वाला काम मैं taxation 3 साल कर करके already पक चुका था. So I wanted something else. Then खुद का practice खोलने के लिए you need connects and everything, and I wanted to stay in Mumbai, so that was also not an option क्योंकि contacts ढूंढना, खुद का practice चालू करना, capital invest करना is very risky. And then a new business, something of your own, उसके लिए भी capital चाहिए. I did not have that capital at that time, so I thought कि let's invest some time in a job, search for a high paying job, have some savings, have a bank balance ready so that I can take risk down the line. So this was the search which I began कि ठीक है जॉब कर ले. Now entering into this field, मेरे को वो नहीं पता था मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को ये पता था मेरे को कहाँ नहीं जाना है. So I was very clear in my mind कि मेरे को फाइनेंस नहीं करना है. तो फाइनेंस वाले रोल्स By कुछ any भी specific reason for that? मतलब पसंद नहीं था. एसएफएम में मेरे को ऑल्दो आईपीसीसी एंड फाइनल दोनों में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, बट मतलब मेरे को नहीं था उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं था अंदर से जो. Subtle way of flaunting. Highest marks आए थे, but फिर भी अंदर से नहीं था. You तो could have अंदर just से mentioned, कि नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, बट बोलना था कि एसएफएम में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे. तो अंदर से नहीं आ रहा था कुछ कि ठीक है मैं फाइनेंस में कुछ कर सकता हूँ, रोज न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, रिपोर्ट पढ़ूंगा, ये सब नहीं था मेरे अंदर से. तो आई थॉट कि ठीक है कुछ और सोचते हैं. देन व्हाट आई वांटेड टू डू वाज कोई एक एफएमसीजी में एंट्री लेना, लाइक गोदरेज, मैरिको, क्योंकि आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद द प्रोडक्ट दैट दे मेक. सो आई वांटेड टू नो कि बैक एंड पे क्या चलता है एंड व्हाट वर्क कैन आई डू देयर. एंड सिंस आई हैड अ रैंक, तो आई हैड एन ऑप्शन कि ठीक है फाइनेंस के अलावा भी मेरे को कुछ मिल सकता है जो सीएस के अलावा लोगों को मिलता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग रोल्स, जिसमें अलग अलग एक रोल्स में यू हैव टू बी इन 3 months, अलग अलग स्टिंट्स होते हैं. सो I had the luxury of getting a MBA kind of a role, so I started exploring them. So first I set for Godrej का interview. उसमें उन्होंने ऐसे एक वीडियो बना के मंगवाया था, वो राउंड क्लियर हुआ, बट देन क्या था वो वीडियो में एग्जैक्टली? व्हाट डिड यू
mention? मतलब उसमें ऐसा था कि खुद का इंट्रोडक्शन देना है, योर स्ट्रेंथ्स योर वीकनेसेस और व्हाई गोदरेज, ऐसे कुछ करके 1 मिनट का तुमको वीडियो बना के भेजना था। Hmm. उसके बेसिस पे दे हैड द फर्स्ट लेयर ऑफ How did you do शॉर्टलिस्टिंग। that? How did you do that? Can you show us? I am Godrej here now. You are sending me the video. Record a 1 minute video in front of everyone. Yeah, so, hi, I am Sharan Malpani. I hail from Pali, Rajasthan, and I will divide my journey up till here into two parts. One before coming to Mumbai, second after coming to Mumbai. So before coming to Mumbai, I studied till the IPCC level of CA in my hometown itself. I was a academically bright student, also participated in extracurricular activities. Cleared CBT in first shot, clear IPCC with a rank. To leverage that, moved to Mumbai. Joined KPMG in their corporate taxation department. Worked there for 3 years across these work modules. My strengths are I am positive, I am a team person. My weakness is उस टाइम मैं काफी मोटा था, तो my weakness is obesity is what I mentioned, and थोड़ा communication पे भी थोड़ा सा हाथ टाइट है. And then मतलब मैंने गोदरेज की वेबसाइट पे जाके उनके कुछ की टर्म्स उठा लिए थे, उनके वैल्यूज एंड एवरीथिंग. So I thought of including them in my 1 minute का introduction so that उनको Wow. लगे कि भाई बैकग्राउंड रिसर्च करके आया. Yeah. सो आई सेंड दिस. उसके बाद मैं वहां से उस राउंड का तो क्लियर हो गया था. उसके बाद दे हैड अनदर पीआई, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया. सिंस मतलब आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द पीपल विल रेजोनेट विद मी. मतलब एवरीवन हु इज नॉट इन मुंबई गेट्स हाई कंपटीशन फ्रॉम पीपल हु आर इन मुंबई, क्योंकि वो ऑलरेडी इंग्लिश में काफी वेल वर्स्ड होता है. तो इस इंटरव्यू वगैरह में फर्स्ट लेवल पे दे किल अस हु आर नॉट in Mumbai or English में उतना they do not have a strong hold. So Godrej could not Do convert. you think English is like the reason for companies rejecting candidates? English, so what comes with English is confidence. And if you are sitting in a GD I जहाँ पे, partially disagree, but yeah, go ahead. I'll tell my point. Yeah. तो let's say अभी अपन चार जो स्क्रीन पे हैं, ये Hmm. चारों लोग GD राउंड में है, and there Okay. is a person watching all of us. Yeah. Now we are interacting. मैं जो इंग्लिश बोल रहा हूँ उसमें there are a lot of fillers. There I am not using powerful words. I'm not using sentences which makes complete sense. Hmm. And then you three are from Mumbai. You three have been speaking English from a lot of time. तुम लोग एकदम इंग्लिश में लाइनें फाड़ते जा रहे हो. तो even if my content is strong, I will become a bit anxious कि तुम लोग ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो खुद को. So that is something where I am sure कि English is not the reason due to which anyone will reject you. Content is what speaks for itself. But still, when you are in a forum जहाँ पे बाकी लोग काफी strong है, तो you might get a bit underconfident while speaking. Makes sense. So उसकी वजह से I could not convert Godrej. Then Marico में this GD thing happened in Marico itself. What was the Marico, GD topic? GD topic also, Marico have a different style. They in some years they give a topic like AI or something, उस पे debate करो, उस पे लड़ो. And कभी कभी वो केस स्टडी देते हैं, something which might be happening in their business. उसके basis पे you have to, and there are some questions related to that case study. उन questions पे you have to give answers. Do you After your remember? Do you answers, remember the case study by any chance? so there were 3 products which these guys were evaluating. उन तीनों प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइस जो उन्होंने रखा था उसके बेसिस पे क्या डिमांड की इलास्टिसिटी हुई है वो उन लोगों ने मेंशन किया था. उसके बेसिस पे देयर वर सम मोर फैक्ट्स गिवन अबाउट कंपटीशन एंड द कंज्यूमर्स. उसके बेसिस पे यू हैड टू गिव 3-4 आंसर्स की प्राइसिंग रिवैम्प करना चाहिए क्या, प्राइसिंग का क्या मॉडल यूज करना चाहिए जो अपन कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं प्रोडक्ट का, सो दैट द प्राइसिंग अगर कम भी करें तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा. सो देयर वाज अ मिक्स ऑफ थ्योरी एंड हाँ वो एससीएमपी विवेक भाई. हाँ, तो देयर वाज अ मिक्स ऑफ कंटेंट और जो केस स्टडी दिया है उसके बेसिस पे यू हैड टू आंसर कि कैसे मतलब उसके बेसिस पे देयर वाज अ डिस्कशन कि कोई बोल रहा था ये करना है, कोई बोल रहा था ये करना है, एंड फिर लड़ो. तो दिस इज व्हाट जीडी इज. तो Got जीडी it. हुआ बट आई कुड नॉट कन्वर्ट इट. फिर ठीक है, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जीडीज हो रहे हैं, लोग आगे निकल रहे हैं ये वो. बट व्हाट आई आल्सो डिड साइमल्टेनियसली वाज आई स्टार्टेड अपीयरिंग फॉर सम बिग फोर वाले इंटरव्यूज, सम नॉर्मल लेवल इंटरव्यूज जहाँ पे आई न्यू कि मेरा सिंस रैंक है तो कन्वर्ट हो जाएगा. So I was confident in whatever I was speaking there, and then I tried to replicate that in all of the interviews which I gave. तो उससे I started थोड़ा थोड़ा gripping कि interviews में कैसे खुद को present करना है. Then campus also came in. Campus में Accenture was the biggest company which was there that time. Biggest as in terms of package or in terms of As what? in terms of package as well, and in terms of How much the it was role which they giving? was What was offering. the salary? It was offering 17 plus variable, so it was Okay. 20.
Okay, got it. And the roles were two. There was management consulting and there was technical consulting. Technology consulting is basically not something which management consultants do, but consulting in the tech area. कि IT में if you want to implement something Oracle वगैरह तो कैसे करना. Okay. So these were the two roles. So I sat for management consulting, and उसमें से 70 में से शायद 5 लोग convert किए थे, and I was one of them. Oh wow. So I landed the job at Accenture, but it was on 23rd of October. 20th of October को मेरा Bain का interview था, which I could not clear. Okay. So management consulting के interviews and everything पे I guess we will come at a later stage. But Yeah, sure. Bain का I was not able to clear, but Accenture I was able to clear. So I had a job in hand, which was good. Hmm. So BCT भी था उसके बाद. I was shortlisted for BCT as well, but मेरा मूड थोड़ा कम हो गया था कि Accenture हो गया है, Bain नहीं हुआ तो क्या पता BCT भी होगा या नहीं होगा. So I was very light. But then एक सेमिनार हुआ था BCT का, जिसमें they called all of us who were shortlisted. उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई about BCT, कैसे लोग ट्रैवल करते हैं, एक 2-3 महीने में they travel 7 states, Hmm. etc etc. Hmm. तो I was थोड़ा सा excited कि शायद ये अच्छा है, because I love traveling. So Hmm. that was the sole reason which sort of drove me towards it. Got I it. prepared for a BCT का I interview, think and you had also mentioned that girls were also the reason you had applied for BC. You had liked some girls there, right? मतलब HR तो ये लोग शायद ऐसे इसीलिए मतलब देख के ही चूज करते हैं. That was not particularly the case with BCT, but ठीक है. The primary reason was traveling and the money and everything, and of course BCT is a big name. So I sat for the interviews. 21st of November was the D-Day. Hmm. उसी दिन उन्होंने रिजल्ट भी बता दिए थे. At the end of the day I had BCT as well. 25th से मेरा Wow. Accenture में ज्वाइनिंग था, but Hmm. मैंने फिर उसको मना कर दिया, and I joined BCG in December that So year. you can do this, right? I mean, पहले हाँ बोल दिया और बाद में मना कर दिया, चलता है ऐसा? तो ICI के कैंपस पे लिखा होता है that you will have to pay some 500 या 5,000 rupees if you do this. 5,000 है. मैंने तो हाँ नहीं but भरा था बट कभी. हाँ वही मेरे से भी Accenture ने मांगे तो नहीं होते थे. Okay, got तो it. And what was मतलब the salary at BCG? BCG offered 18 lakhs plus variable. So it Okay, was a CTC of 20 lakh, equals to what there was at Accenture. okay, got it. Cool, perfect. Thank you so much, Sharad. This was very granular. Moving to Atul. Atul, tell us about your experience at campus placements, and then we'll delve down deeper into the unit economics of each of your businesses and all. मेरा क्या था कि तो पहले से जॉब का था नहीं, मैंने आर्टिकलशिप देखा था, आर्टिकलशिप में क्या होता है, सीए की जॉब में कैसा होता है, तो मेरे को काम ज़्यादा पसंद था नहीं. मतलब बेसिकली मेरा काम कैसा है, ऐसा तो चलो साइन करना हो, ऐसा काम हो कहाँ तो से अगर किया था ठीक आर्टिकलशिप, कहाँ से था? है. जयपुर की एक सेकंड नंबर की था ना, आर्ट्स ऑर्गेनिक एंड एसोसिएट. मतलब जयपुर की वैसे तो आर्टिकलशिप पे नंबर 1 ही चलती है वो. हम्म. हमारी रैंक आने के बाद मेरा मेरा मैंने भी वहीं से किया था, मेरे भाई ने भी वहीं से किया था, और क्या बोलते हैं, मेरा जो छोटा भाई सबसे, उसने भी वहीं से किया, सबने वहीं से किया हमने. तो वहाँ आर्टिकलशिप तो काफ़ी अच्छी थी, और वहाँ कुछ सेशंस वगैरह भी होते थे. मतलब काफ़ी अच्छा केस था. मतलब मैंने जो देखा ना आर्टिकलशिप के हाल, बिग फोर में हाल देखे हैं, बिग फोर के जो हाल हैं या बाकी जगह के हाल देखे हैं, उससे तो काफ़ी बेटर था आर्टिकलशिप का. तो वो तो मेरे को अच्छी फर्म मिल गई थी उसके. लेकिन मैंने वहाँ जो काम देखा ना कि काम सीए का कैसा होता है, या ये काम मेरे लेवल का है या मुझे पसंद है नहीं है, तो मुझे पसंद नहीं था. मतलब किसी के अंडर काम करना मुझे पसंद था ही नहीं, वो मैंने वहाँ समझ चुका था. हम्म. तो जो मेरे को करना नहीं था बिल्कुल ही, ये तो मैंने बैठा ही लिया था कि चाहे रैंक कैसी भी आए, जॉब करना नहीं है. अब जॉब नहीं करना, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरे जो सीए फर्म वाले हैं पार्टनर, जहाँ आर्टिकलशिप करी थी, उन्होंने बोला, और मेरे जो दोस्त हैं वो भी बोले कि बात कैंपस में चल तो ले, पता तो चलेगा वैल्यू क्या है, रैंक 1 की या किसकी वैल्यू क्या है. तो मैं गया था वहाँ पे, दिल्ली कैंपस भरा था मैंने पहले, दिल्ली वाला भी भरा था, और एक छोटा वाला जो स्मॉल स्मॉल सिटी वाला कैंपस आता है, 2 कैंपस होते हैं, वो चंडीगढ़ का, वो भी भर दिया था. तो तब सोचा था आईएएस कर लेंगे, आईएएस में पावर वगैरह मिलेगी, बढ़िया काम है, आईएएस कर लेंगे. और अगर जॉब मिल जाती है, अगर कोई गवर्नमेंट वगैरह कंपनी में जॉब मिल जाती है, क्योंकि मैंने सुना था ऐसा, तब पता नहीं था मेरे को, पर सुना था कि गवर्नमेंट कंपनी में काम तो होता नहीं है, ऐसा सुना था. और मेरे को बाद में पता चला वहाँ भी काम होता है कंपनी में. काम तो कहाँ नहीं होता, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं ना, जैसे जीएसटी ऑफिस हो गया गवर्नमेंट का, या ये, इनमें काम नहीं होता, इनमें टाइम पास चलता है थोड़ा. पर गवर्नमेंट कंपनी जो आईओसीएल वगैरह, बीपीसीएल वगैरह, इनमें तो काम काफी होता है, ये मैंने सुना नहीं था, लेकिन अब पता चल गया क्योंकि मेरे दोस्त काफी सारे काम कर रहे हैं. तो मैंने सोचा चलो टाइम मिलेगा, बढ़िया है, वहाँ तो काम वगैरह होता नहीं होगा, गवर्नमेंट के हाल तो खराब होते हैं, तो बढ़िया टाइम मिलेगा, आराम से आईएएस हो जाएगा, 10-15 लाख 20 लाख जो भी मिलेंगे, बढ़िया वो भी आता रहेगा. फैमिली की कुछ कंडीशन ऐसा नहीं कुछ अच्छी थी, नॉर्मल थी. इसके अलावा तो क्या था, अब जैसे रैंक 1 आई मेरी, तो लोग जलने वाले भी होते हैं. तो मेरे पापा की दुकान थी मेडिकल,
तो लोग तो देखो जलने वाले होते हैं गाँवों वगैरह में या शहरों में, कहीं पे भी होते हैं आसपास के। तो उन्होंने क्या है, मेडिकल में क्या है, काफी सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, आपको भी पता है कि कुछ भी चीज पे शिकायत करी जा सकती है। जैसे कुछ एक सिरप आती है कोडीन, कोडीन कोरेक्स आती है, अगर आपने सुना हो तो, जो नशे में भी काम आती है। तो वो सेल तो होती है सब जगह, पर वो क्या है, डॉक्टर की पर्ची पे सेल होती है। तो ऐसा करके क्या लोगों ने क्या किया, शिकायत करवा दी फर्जी कि ये वैसे बिना पर्ची के सेल कर रहे हैं। तो उन्होंने वो डलवा दी थी, एक तरीके से रेट डलवा के दुकान बंद करवा दी। तो ये दिक्कत और हो गई थी। फिर मैं सोचा अब आईएएस करूंगा मैं, अगर कुछ भी नहीं करके आईएएस करूंगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, घर कैसे चलेगा, क्योंकि दुकान तो बंद हो गई। तो घर कैसे चलेगा, तो फिर मैंने सोचा चलो जॉब के साथ कर लेंगे। तो फिर मैं चला गया कैंपस में। पर कैंपस में गया सबसे पहले तो मैंने क्या बोलते हैं ओएनजीसी का दिया था। मेरा जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो सब में हो गई थी, आईटीसी वगैरह सब में हो जाती है वो तो, रैंक 1 की। तो मैंने सारी की सारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी चूज करी थी, ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसीएल, और एक और थी गवर्नमेंट की, याद नहीं आ रहा उसका नाम। चारों गवर्नमेंट की चूज करी थी, जो बिग सेंटर HPCL था उसके। HPCL होगी हाँ, शायद। एचपीसीएल। और हम्म। छोटे वाले सेंटर में भी दो कंपनी थी गवर्नमेंट की, दो ही चूज करी थी, एक एनबीसीसी नाम से थी, एनबीसीसी, और एक और थी। तो सारी गवर्नमेंट की कंपनी चूज करी मैंने। अब गवर्नमेंट की कंपनी चूज करी, तो वहां गया, ओएनजीसी का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में क्या होता है, देखो रैंक 1 वाले होते हैं, रैंकर्स होते हैं ना, स्टार्टिंग के रैंकर्स, कुछ से तो क्या है वो टेक्निकल राउंड करते हैं। टेक्निकल राउंड मतलब खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। खतरनाक तो कुछ नहीं होता, जो मैंने देखा है, मैंने तो काफी सारे फ्रेंड्स का देखा है, और मेरा जो मेरे को पता है, और बाकी जो मेरे दोस्त है, 10-15 जो दोस्त थे फर्म में जो पास हुए थे, उन सब का इंटरव्यू जब मैंने देखा कि उनके इंटरव्यू में क्या पूछा या मेरे में क्या पूछा, तो बिल्कुल बेसिक चीजें पूछते हैं वो। ज्यादातर क्या होता है, या तो इनकम टैक्स में तो बेसिक क्या टीडीएस की रेट पूछते हैं, या एडवांस टैक्स वगैरह की ड्यू डेट्स पूछते हैं, जो मैंने देखा। जीएसटी में बिल्कुल बेसिक ब्लॉक क्रेडिट के बारे में, या जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ना, आईटीसी चैप्टर, उसके बारे में पूछते हैं। एसएफएम में बेसिक पूछते हैं आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो मैंने देखा वहां पे। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन बेसिक वो बनाते हैं, नॉर्मल जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह का होता है ना, ये बनाते हैं। फिर मेरे को बाद में पता चला वो खुद तो कुछ करते नहीं, खुद तो नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, जो सीए जैसे मान लो लास्ट अटेम्प्ट में बने, जो लास्ट अटेम्प्ट में उस कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे मेरे फ्रेंड है आईओसीएल में काम कर रहे हैं, तो वो उनको क्वेश्चन बना के दे देते हैं, आप ये पूछ लो, ये पूछ लो, वही बना के दे देते हैं अगले अटेम्प्ट के लिए, अगले कैंपस के लिए, उससे अगले कैंपस के लिए, ऐसे बना के देते हैं। तो बिल्कुल बेसिक पूछते हैं। पोस्टिंग में पूछते हैं मार्जिनल पोस्टिंग, तो सबके साथ ही ऐसा था, बिल्कुल बेसिक पूछते हैं। इंडेस में पूछते हैं, इंडेस 115, ये इनका काम था। मतलब बिल्कुल बेसिक, जो आप रिवीजन वीडियो देख के कुछ भी करके कर सकते हो, ऐसा तो उनका क्वेश्चनिंग होती है जो होती है। और जो रैंक जैसे मेरा था, तो मैंने तो पहले बोल दिया मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, मैं साफ ही बोल दिया था उनको, तो आप हिंदी में पूछ लेना, पूछना हो तो उन्होंने ओके। हिंदी में पूछा, मैंने हिंदी में जवाब दिया, मेरे को इंग्लिश अच्छा, आती भी आपका नहीं आपका थी। इंटरव्यू पूरा हिंदी में हुआ है? टोटल इंटरव्यू हिंदी में, उन्होंने पूछा भी हिंदी में, मैंने बोला मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, मैं हाँ। आपको हिंदी में ही दूंगा इंटरव्यू। वाओ। ओके। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं। तो ओके। सबने ले लिया था, तो किसी ने मना नहीं किया, कि ऐसा नहीं बोला कि चलो जाओ, ऐसे नहीं। ओके। फिर ओके। इसका भी मैंने सुना था, इसका भी क्या हुआ था, एक हाँ। केस था। हमारी फर्म का एक काफी अच्छा आर्टिकल था, जो मेरे से 2 साल सीनियर था, 2 साल सीनियर थे वो। तो वो भी गाँव से थे बिल्कुल, तो उनको भी बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी। उनकी रैंक आई थी AR29, तो उनकी रैंक आई AR29, तो उन्होंने भी इंटरव्यू दिए थे ना। तो एक कंपनी ने उनको मना कर दिया था, उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। तो आईटीसी थी या कौन सी थी पता नहीं, तो बोला हम्म। कि फिर तो भी नहीं हो पाएगा, लेकिन बाकियों में तो उन्होंने दे दिया था। तो फिर मैंने भी यही किया, लेना हो तो ले लो। आपको कोई तो इंटरव्यू में ऐसे बोला कि इंग्लिश में ही बात करनी है? नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं बोला, सबने हिंदी में लिया? किसी भी नहीं बोला, ये बात तो क्या किसी ने बात, नहीं की। क्या बात है, तो उन्होंने ठीक है। हिंदी में दिया, हिंदी में उन्होंने क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, ओएनजीसी में दिया पहला इंटरव्यू, उसने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा टेक्निकल वाला, मतलब हम्म। सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक भी नहीं पूछा। उन्होंने ये बोला आपकी रैंक 1 आई है, तो नॉलेज तो आपकी है, वो तो हम हम्म। पूछेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। हम्म। सबसे पहले उन्होंने बोला कि देखो गवर्नमेंट कंपनी है, आपको लोकेशन कोई भी मिल सकती है। आपने बोला, मैंने बोला कि मेरे को दिल्ली लोकेशन चाहिए, या तो अगर जयपुर है आपके पास तो जयपुर दे दो। हम्म। बोले जयपुर में तो लोकेशन, हमारा ऑफिस ही नहीं है, कि कोई सीए का काम वो नहीं है। तो हाँ। आप बोले कि देखो आपको काम भी करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कंपनी है हमारी ओएनजीसी, इसमें ऐसा भी होगा हम आपको आसाम ऑफिस भी दे सकते हैं। अब वहाँ आपको छोटे मोटे काम भी करने पड़ेंगे। अब आप रैंक 1 वाले हो, ऐसा तो नहीं है ना कि आप 1 महीने में भाग जाओगे, पार हो जाओगे। हाँ। आपको लगेगा क्या बोरिंग काम चल रहा है, या खाली हाँ। बैठे हैं तो पार हो जाओगे, या आपका कोई और प्लान तो नहीं है। ऐसे ऐसे बात कर रहे थे वो मेरे से, पहले तो हम्म। ये बातें करी। फिर एक दो चीजें, नॉर्मल चीजें पूछी, आप कंफर्टेबल हो क्या आसाम में? तो मैंने बोला तो देखो मैं कंफर्टेबल तो नहीं हूँ, मैं दिल्ली ही दूंगा अगर आप दोगे तो फिर बोला ठीक है, अब देखते हैं फिर। ठीक है, उन्होंने बाकियों का लिया, बाकी रैंकर्स का लिया। रैंक उसमें रैंक 2 भी थी, एक रैंक 6 भी था, जो ओएनजीसी में उन्होंने इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे दिल्ली वाले कैंपस में। तो उन्होंने मेरे को और एक बंदे को सिलेक्ट किया था। एक दूसरा बंदा था, उसने जो सब लोकेशन बोल दी थी, वो रैंक 6 या कौन था। फिर मैंने बोला कि मैंने ले आया था एक बार, तो हाँ ठीक है। फिर मैं, जब वो बोले कि बता तो दो बता तो दो, मैं चला गया था आईओसीएल के इंटरव्यू में, तब हम्म। की तब। उनको बताया बताया नहीं,
सीधा चला गया। फिर आईओसीएल में दिया, आईओसीएल में भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने एक आईआरआर पूछा था मेरे से, एक क्वेश्चन बस छोटा सा, और कुछ नहीं पूछा था उन्होंने, आईआरआर के अलावा कुछ नहीं पूछा। हम्म, और वही हिंदी वाली बात तो मैंने पहले ही बोल दी थी उनको भी। हम्म, ये नहीं पूछते, वो नाम वगैरह नहीं पूछे कि आप इंटर हो तो अपना, ऐसा कुछ नहीं पूछते वो तो देखते हैं चीजों में देखते हैं, तो ये पूछते नहीं है। बाकी कहीं जगह पूछ लेते हैं, लेकिन मेरे से तो किसी ने पूछा नहीं ऐसा इंटर वगैरह। वो पूछा, उसके बाद आईओसीएल में भी मैंने बोला तो मेरे को दिल्ली की लोकेशन की। उसकी तो क्या थी, आईओसीएल का एक ऑफिस था जयपुर में भी, तो मैंने बोला आपके पास जयपुर का ऑफिस है एक, आप अगर दे सको तो दे दो। तो उन्होंने बोला जयपुर में तो बंदा ऐसा नहीं मिलता, 15-20 साल में जाके कभी होता है कोई। तो फिर दिल्ली का मैंने बोला, दिल्ली का बोला तो फिर उन्होंने मेरे को बाहर भेज मतलब वो भेज दिया बाहर। फिर वहां पे AIR6 ने थी, AIR6 मेरे बैच की, उसने भी इंटरव्यू दिया। उससे इंडिया वगैरह का पूछा, तो उसने इंडिया में काम कर रखा था, तो तब इंडिया से स्टार्ट ही हुए थे। तो उस लड़की से पूछा, उस लड़की ने बोल दिया कि मैं तो कहीं भी ज्वाइन कर लूंगी। तो मेरे को बाहर बैठा के रखा उससे कंफर्म करने के लिए कि वो अगर हाँ कर देती है कहीं भी ज्वाइन करने के लिए। तो फिर इंडियंस की जगह उनको लेना था एक बंदा, तो उन्होंने उसको फाइनल कर लिया था। फिर मैंने मना ही कर दिया था उसमें, तो ठीक है उसका भी हो गया। फिर तीसरा था बीपीसीएल का, बीपीसीएल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, रैंक वन के चक्कर में, वो वैसा क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं है जो क्वेश्चन टेक्निकल नहीं वाले पूछा तो होते हैं। इंटरव्यू किसके ऊपर था, मतलब क्या बात क्या इंटरव्यू, करते एक तो मैंने बताया ना इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, आप कंफर्टेबल हो गए, लोकेशन बोलते हैं बस, हम आसाम भी देंगे आपको, 3 साल में ट्रांसफर भी होगा, 15 मिनट तो ये बात करते हैं वो। ओएनजीसी वाले ने भी ये बात करी थी, उसने भी ये बात करी थी, आईओसीएल वाले में, बीपीसीएल वाले ने भी। हाँ, बीपीसीएल में क्या था, उन्होंने फॉर्म भरवाया था, उसमें भरवाया था कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वगैरह कैसी है। तो मैंने लिख दिया मैं तो पूरा मोदी फैन हूँ, या मोदी भक्त हूँ, या योगी भक्त हूँ, कट्टर टाइप तरीके से मैं। तो ऐसा लिख दिया मैंने। तो उन्होंने पूछा आप ऐसे कट्टर हो तो दिक्कत आ जाएगी, दूसरी कम्युनिटी है वो है, मतलब मेरी सोच मेरे को मुबारक, उनकी सोच उनको मुबारक, बात ठीक है। तो मैंने ऐसे बात की उनसे, तो बोले मतलब क्या कॉन्फिडेंस है यार, मतलब मैं सोच रहा हूँ कितना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। ऐसी ऐसी बातें चल रही थी उसमें उसमें थोड़ा टाइम पास हो गया था, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी कुछ कुछ खास नहीं था, बस मेरा कम्युनिकेशन एक चीज में खास था, पॉलिटिकल वाले में। जैसा मैंने जिस फर्म में आर्टिकलशिप करी थी ना मैंने, वहां भी क्या सैटरडे को क्लास होती थी 2 घंटे। 2 घंटे सैटरडे की क्लास में क्या होता था, 1.5 घंटे तो होती थी फालतू टाइम पास, ये टॉपिक्स वगैरह के, इनकम टैक्स के, इनके के ऊपर पूरा टाइम पास होता था। आधे घंटे की लास्ट की क्लास होती थी पॉलिटिक्स पे, कि जैसे जेएनयू में नारे लगे या ये लगे, मैं उस पर पार्टिसिपेट करता था। और उसमें मेरा कम्युनिकेशन एकदम खतरनाक था, मतलब उसमें तो कुछ भी करवा लो आप, 2 घंटे 5 घंटे किसी से भी करवा लो, मेरे बहस करवा लो, कुछ भी करवा लो। तो बस वो कम्युनिकेशन मेरा अच्छा था हिंदी में। हम्म, बाकी ये कम्युनिकेशन मेरा खास था नहीं, ये इंटरव्यू वगैरह का, या क्योंकि मैं पढ़ी कोई वैसा तो था ही नहीं, कोई सिटी से था, एक छोटा सा कस्बे से था, वहाँ स्कूल भी हिंदी मीडियम, सब कुछ हिंदी मीडियम। हम्म, तो ये था, तो पॉलिटिक्स का क्या है, मेरा इंटरेस्ट पहले से था, और मैं काफी सारे वीडियो ये पॉलिटिक्स देखता था, अभी भी मैं पॉलिटिक्स देखता हूँ, भयंकर वीडियोस देखता हूँ। तो इस कारण उसका कम्युनिकेशन तो मेरा काफी खतरनाक हो गया था। उसके क्या है, काफी सारे पॉइंट्स भी मेरे पास हो गए थे, इतने सारे वीडियो देखने के बाद मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग डाटा था कम्युनिकेशन करने का, या कोई हम्म, भी बहस वगैरह करने। तो उसके हम्म, हाथ मैंने बीपीसीएल वाले के साथ आधे घंटे तो यही बहस करी थी, ये हम्म, है, मैं तो ऐसे सपोर्ट करूंगा, इसमें क्या है, तो आधे घंटे तो हमारी यही बातें हुई थी उसमें। फिर हम्म, उन्होंने बोला हम आपको कोलकाता लोकेशन दे देते हैं अभी, कि अभी आप साइन कर दो कोलकाता लोकेशन, आप एग्री हो गया, और थोड़ा सा आप रिजिड रिजिड हो आप इस चीज में, थोड़ा सा आपको सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब सॉफ्ट रहना पड़ेगा, ऐसा बोला उन्होंने। मतलब देखो कोलकाता तो मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरी फैमिली तो यहीं रहती है, तो दिल्ली के पास ही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि फिर फैमिली से दूर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे को फ्राइडे नाइट को फैमिली के पास जाना है। हम्म, मैं तो आर्टिकलशिप में भी सैटरडे, क्या बोलते हैं, सैटरडे को जाता था, घर पे चला जाता था, तो मंडे को सुबह आ जाता था वापस। मेरे को लग रहा है आपके केस में इंटरव्यूअर इंटरव्यू हो गया था और आप इंटरव्यूअर हो गए थे, मेरे को तो ऐसे फीलिंग आ रहा है। तो उसने फिर मना कर दिया, उसने लिया नहीं था मेरे को, उसने सिलेक्शन नहीं किया था, मतलब जो सिलेक्शन हाँ, की बाद में लिस्ट निकाली थी, तो सिलेक्शन नहीं किया था, क्योंकि मैंने मना ही करके आया था। ये हुए थे 3 इंटरव्यू, तो तीनों में एक ने ऑफर लेटर दे दिया था, 2 ने मना कर दिया था इस चक्कर में। और मैं जाना भी नहीं चाहता, मेरा था भी पहले से प्लान कि हम्म, इंटरव्यू को खाली बस देखने जाना है कि क्या होता है, रैंक वन के साथ क्या होता है, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है क्या, तो स्पेशल ट्रीटमेंट तो होता है, स्पेशल ट्रीटमेंट ग्रुप में तो भयंकर होता है, ग्रुप डिस्कशन में। बीपीसीएल में ग्रुप डिस्कशन भी था, बाकी सारे लोगों क्या ने ग्रुप क्या डिस्कशन क्या टॉपिक था? की। एक एक केस स्टडी थी, केस स्टडी में क्या था, एक एम्प्लॉई है, सीए है, वो कमीशन लेके काम करता है, मतलब कमीशन भी ले रहा है अपने क्लाइंट से, काम भी कर रहा है। जैसे मान लो एक बैंक में है कोई बंदा, सैलरी भी ले रहा है क्लाइंट से, या उसके पास जो कस्टमर आते हैं उससे कमीशन भी लेता है वो। अच्छा। तो वो ठीक है क्या, ठीक है क्या वो। हम्म, तो उस पे तो बाकी लोग तो पता नहीं इंग्लिश झाड़ रहे थे भयंकर तरीके से, 15 लोग थे, भयंकर इंग्लिश, कोई कुछ हाई लेवल की, कोई कुछ हाई लेवल की। हाँ, मैंने एक या 2 लाइन बोली, ये ठीक नहीं है ऐसा, हिंदी में बोली वो भी। तो उन्होंने सेलेक्ट कल, मैं सोचा ऐसे ही बाहर कर देंगे मेरे को, जब इतनी इतनी बड़ी बड़ी इंग्लिश झाड़ी है लोगों ने, 5-5 10-10 मिनट, तो गारंटी से बाहर करेंगे ये तो। हम्म, मैंने 2 लाइन या 3 लाइन हिंदी में बोली, प्योर हिंदी में।
हम्म, तो सेलेक्ट कर लिया 5 लोगों को, 10 लोगों को सिलेक्ट किया था उन्होंने, 22 में थे, हाँ 22 लोग थे, 22 में से 7 या 8 लोगों को सिलेक्ट किया, हाँ हम्म, 7-8 को किया था। हम्म, तो कर लिया उसने, और उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में तो लोकेशन वाली बात हुई। तो हम्म, ये रैंक का फर्क पड़ता है, रैंक का ये फर्क पड़ता है, तो ग्रुप में ऐसे डायरेक्ट ले लेते हैं। इंटरव्यू लेते हैं, अगर आप मान लो कोई भी लोकेशन के लिए एग्री हो ना, तो तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर हम्म। आपकी अच्छी रैंक है तो। क्या और पैकेज था अगर ये सारे कंपनीज में? सब कंपनीज में देखो, ओएनजीसी में 16 लाख का था सीटीसी, 16 लाख का सीटीसी, और 70-80 हजार रुपए इन हैंड था शायद। हम्म, और आईओसीएल में भी 16 लाख का सीटीसी, 70-80 हजार इन हैंड। बीपीसीएल में 18 लाख का सीटीसी ये था। हम्म। तो ये था इनका तो ये सीटीसी। 70-80 हजार इतना कम कैसे आता है टैक्स के अलावा गवर्नमेंट बाकी पैसे? गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है, ये मेडिकल वगैरह पता नहीं क्या क्या करते हैं, अच्छा। तो इन हैंड तो बिल्कुल कम होता है इनका। और टैक्स वगैरह टीडीएस वगैरह कट जाता है सैलरी में, आप वो भी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ। फर्जीवाड़ा करो, डोनेशन वगैरह दिखा के, वो अलग बात है, तो आप हम्म, भी तो कुछ कर नहीं सकते। हम्म, दूसरा, फिर मैं गया छोटे कैंपस। छोटे कैंपस में भी मेरा जाने का था नहीं। सेम क्या है, वहाँ एक कंपनी थी एनबीसीसी आई थी, और एनबीसीसी के काफी सारे एम्प्लॉयज जयपुर में काम कर रहे थे। उन्होंने बोला जयपुर में वैकेंसी है, उन लोगों ने बोला, वो मेरे से एक साल सीनियर। तो मैं सोचा जयपुर में वैकेंसी मिल जाएगी गवर्नमेंट कंपनी, उसका भी 12-13 लाख का सीटीसी था। और मेरे को सोचा कि ये अब पापा की शॉप तो है नहीं, मैं आईएएस भी कर लूंगा साथ में, और जयपुर में तो मेरी फैमिली भी आ जाएगी आराम से। तो इतना बेस्ट ऑप्शन था, तो मैं चंडीगढ़ चला गया उस चक्कर में। एनबीसीसी में दिया। एनबीसीसी में मैंने पूछा पहले कि यार आपकी जयपुर की वैकेंसी है क्या? वहाँ जो थे ना, बोले जयपुर में तो नहीं है ऐसा, अभी वैकेंसी बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं सोचा क्या फायदा, फिर मैंने बेमन से उसका भी इंटरव्यू दिया, क्योंकि जब मेरे को लगा कि जयपुर में वैकेंसी नहीं है तो क्या फायदा टाइम पास करना। तो आपने इंटरव्यूअर का इंटरव्यू लिया बेसिकली? नहीं नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें तो उसमें क्या पूछा, उसने टीडीएस, हाँ उसमें जरूर उसने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, टीडीएस की टीडीएस और एडवांस टैक्स की ड्यू डेट पूछी थी बस। हाँ, 2 चीजें पूछी थी बस, और कुछ नहीं पूछा हाँ। था उसने। आपने उसको बताया नहीं मैं तो ये पढ़ाता हूँ अभी बच्चों को, आगे जाके तो मैं मैं तो पढ़ाने ऐसे वाला हूँ। ही टीडीएस और एडवांस टैक्स की ड्यू डेट पूछी और मैं आ गया। और टाइम हम्म, पास था, वो कुछ भी काम का नहीं था, क्योंकि मैं देना ही नहीं चाहता। जब मेरे को लगा कि जयपुर में, तो इसके चक्कर में चला गया कि हम्म, उन्होंने सीनियर ने बोला 6 वैकेंसी है जयपुर में, मतलब 6 सीट्स हैं। और हम्म, वहां जाके पता चला सीट्स ही नहीं है। तो हम्म, मैं सोचा क्या फालतू में टाइम पास किया। एक और कंपनी थी वहां पे, क्या है, एक कंपनी का तो मैंने सिलेक्शन नहीं किया था, लेकिन वो कंपनी जयपुर की थी, कोई प्राइवेट कंपनी थी, पता नहीं क्या थी, विप्रो थी, नहीं विप्रो नहीं, कोई अलग ही कंपनी, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। उसने तो चेस खिलवाया था, वो चेस वगैरह से सिलेक्शन करेगी, उसका काम ही अलग था, वो मैथमेटिक्स वगैरह का था। तो उसका तो एक टेस्ट हुआ। टेस्ट तो पता नहीं कौन सा ही था, मैथमेटिक्स वाले होते हैं ना, अलग ही टाइप के टेस्ट थे। हम्म। फिर चेस वगैरह हुआ उसमें, और चेस से सिलेक्शन हुआ उसमें। वो जयपुर की कंपनी थी, तो ऐसी स्पेशल भी होती है। पता नहीं, वो याद तो नहीं आ रहा नाम कंपनी का था मेरा। तो उसमें तो ऐसे ही मैं सोचा चलो जयपुर की कंपनी है, तो जयपुर की प्राइवेट कंपनी थी वो, तो चलो चंडीगढ़ आए तो टाइम पास इसमें भी कर लेते हैं। तो बैठ गए हम ऐसे ही चेस खेलने और टेस्ट वगैरह देने। हम्म। तो वो टाइम पास किया था एक। वो सही है, टाइम पास सही है। करने के बाद फिर मैं आ गया कि चलो ठीक है, अब तो जॉब वगैरह तो हम्म, करनी नहीं है, मिलेगी तो ऐसे है नहीं जॉब। हम्म, फिर मैं सोचा चलो टीचिंग ही करते हैं। मेरे को वीएसआई, जहाँ मैंने टेस्ट दिए थे वीएसआई, वहां से ऑफर था पहले से कि पढ़ा लेना। तो वहां गया, उन्होंने तो पहले से बोल रखा था पढ़ा ही लेना, सही रहेगा, पढ़ाने के साथ साथ आईएएस भी कर लेना। तो मैंने सोचा चलो सबसे बढ़िया है। तो उन्होंने जो ऑफर किया, मतलब ऑफर मैंने पूछा भी नहीं क्या प्राइस वगैरह, मैं तो सीधा बैच लेने गया था। एक बात भी नहीं हुई थी हमारी कि कोई एग्रीमेंट हुआ है कुछ भी हुआ। मैं तो सीधा पहला बैच लेने गया था। इंटरनेशनल टैक्स का उनके पास टीचर नहीं था, फाइनल उन्होंने स्टार्ट किया था। फाइनल की पहली बार क्लास स्टार्ट की थी उन्होंने, उससे पहले तो खाली टेस्ट वगैरह चलते थे उनके। तो तब मैं वहां गया, इंटरनेशनल टैक्स की मैंने बैच स्टार्ट किया। 2 महीने तक मुझे पता ही नहीं था क्या क्या पेमेंट मिलेगा, पेमेंट क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, बस क्लास लेता रहा। फिर पेमेंट आया था, शायद उन्होंने जो दिया था 700-800 रुपये 1 घंटे के हिसाब से, 600-700 रुपये जो भी है, इस हम्म। अकॉर्डिंग पेमेंट दिया। चलो ठीक है, मैं सोचा मैं सोचा चलते हैं इसमें। तो फिर कितना क्या हुआ, यूजुअली कितना होता है एक, कितना सब कितने घंटे पढ़ाया होगा आपने? मेरा पहले महीने का जो मेरा इनकम आई थी ना, पहले महीने मैंने 8-10 दिन ही पढ़ाया था, और 1-1 घंटे ही पढ़ाया था शायद। हम्म। 14,000-15,000 रुपये आई थी शायद तक, मेरी पहले अच्छा। महीने की तो इनकम थी। और मेरे कभी दोस्तों की आपने कभी कभी सोचा था कि करोड़ों में कमाओगे आप आगे जाके? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, ना पहले से कोई प्लान किया था मैंने, ना कभी कोई भी प्लान करता आगे से। हाँ, हाँ, तो 14-15 हजार का था, मैंने सोचा चलो ठीक है काम चल जाएगा। हाँ, तो मतलब रहने लायक खाना पीना तो चल जाएगा, खर्चा तो घर खर्च तो चला ही लेंगे। अभी 40-50 हजार हो जाएगा, अभी 10-15 दिन का है, तो 40 से 50 हजार रुपये मिल जाएगा। सफिशियंट है इतना, जयपुर में छोटी सिटी है, काम चल जाएगा, काम तो चलता हाँ, रहेगा। हाँ। पहले महीने की 14 हजार या 11 हजार, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 14 या 11 हजार इतना था। फिर वहां क्या हुआ, इंटरनेशनल टैक्स बैच लिया मैंने। पहले तो रिव्यू खराब, पहला बैच था मेरा, और मैंने कुछ तैयारी भी, मैंने पहले कभी जिंदगी में पढ़ाया नहीं था। मेरे को जरूर हमेशा ये लगता था जब मैं कोई क्लास देखता था कि यार ये टीचर क्या करते हैं, कचरा क्या करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं, एक छोटी सी चीज को ये समुद्र बना देते हैं। ये लोग बेसिक चीज होती है, ये टाइम पास करते हैं टीचर, टाइम वेस्ट करते हैं बच्चों का। तो मैं इसको
अच्छा बना सकता हूँ। तो मैंने अच्छा तो बना लिया था पहले, पर मेरे को पढ़ाना मतलब बोलना, क्योंकि कम्युनिकेशन तो मेरा इतना कुछ खास था नहीं। तो पहला बैच था तो मैंने थोड़ा जल्दी करवा दिया, मतलब इंटरनेशनल टेक्स्ट बहुत जल्दी खिंचवा दिया मैंने, तो बच्चों को लगा ये तो बहुत जल्दी हो गया। तो वो उन सर के पास गए, तो सर बोले मैं टीचर तो चेंज नहीं करूंगा, यही पढ़ाएगा। वो सर भी ये बात माननी पड़ेगी उनकी, ये बात अच्छी थी उनकी। मैंने नहीं करूंगा, आपको पढ़ना हो पढ़ो, नहीं तो जाओ। हम्म। फिर उन्होंने मेरे को बोला थोड़ा सा धीरे पढ़ा, इतना मुझे बोला, तो फिर मैंने धीरे पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरा बैच काफी अच्छा रेस्पॉन्स आ गया उसका। फिर क्या था, वहाँ ऑडिट के टीचर का खराब रेस्पॉन्स आ रहा था, उन्होंने ऑडिट मेरे को दे दी इस चक्कर में, मैंने ऑडिट भी पढ़ा दी, उसका और भी तगड़ा रेस्पॉन्स आ गया। ऑडिट तो खतरनाक, बच्चे पागल हो गए, 20 घंटे में मैंने ऐसे वगैरह करवा दिए थे, और अच्छा रेस्पॉन्स आया। एससीएमपी के टीचर का बेकार रेस्पॉन्स आ रहा था, उन्होंने एससीएमपी मेरे को पकड़ा दी, वो तो ऐसा खतरनाक रेस्पॉन्स आया कि बच्चे पागल हो गए, बोले कि अब तो एफआर भी इनको दे दो। एफआर उन्होंने, उनको लगा कि सारी मैं दे दूंगा इनको तो ये तो पूरा कैप्चर कर लेगा, उनको ये डर लगने लग गया। टीचर्स ने बोल दिया कि आप तो सारे फाइनल के इनको दे दो सब्जेक्ट, 3 तो दे ही दिया आपने, अब एफआर और दे दोगे तो 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे इनके पास। अब इसका दूसरा भाई बन जाएगा सीए, 4 गोल पढ़ा देगा, तो ये तो पूरा कैप्चर कर लेंगे। तो फिर उन्होंने एफआर मेरे को नहीं दी, एफआर वो खुद पढ़ाते थे, बच्चे उनको गालियां देते थे क्या पढ़ा रहे हैं एफआर, अब एफआर कैसे दे मेरे को, तो एफआर उन्होंने दी नहीं। 3 सब्जेक्ट दे दी, मैं 3 सब्जेक्ट कहाँ पढ़ा रहा था। फिर वो चलो अच्छा 3 सब्जेक्ट पढ़ाया तो मेरे बैच भी ज्यादा हो गए, फिर जीटी भी दे दी उन्होंने मेरे को, 4 सब्जेक्ट होगी मेरी, 4 सब्जेक्ट में मेरे 50 55 57 58 60 हज़ार रुपये आने लग गए। चलो ठीक है, 70 80 हज़ार भी आ गए थे शायद तक। तो मैं तो बढ़िया है, चलो फाइनल के 4 सब्जेक्ट आ रही हैं, मेरे 4 सब्जेक्ट के नोट्स भी वगैरह रेडी हो गए बढ़िया से, शानदार। फिर मैंने खुद का तो क्या है, नोट्स वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया था, फ्री जो नोट्स बना था फ्री सबके लिए डालना। और शायद मैंने 1 महीने में टेलीग्राम पे लगभग 40 50 हज़ार बच्चे जोड़ लिए, 1 महीने में, फाइनल के स्टूडेंट, सीए फाइनल के। और यूट्यूब पे भी 1 महीने में 30 40 हज़ार बच्चे जुड़ गए थे, क्योंकि मैंने वीडियो कितने डालना स्टार्ट कितने बच्चे देते एक साल में सीए फाइनल की एग्जाम्स? किया। फाइनल का एग्जाम 1 साल में देते हैं लगभग 1 लाख, 1 से 1.25 लाख बच्चे। और उसमें से आपके पास 50,000 आ गए थे? मार्केट में वो नहीं था ना कंटेंट, मार्केट में कंटेंट इतना कचरा था, आपको भी पता है, पहले कंटेंट था, 400 घंटे की तो क्लास थी। कोई हाँ। भी टीचर की बुक देखोगे आप, पहले होती थी बुक 2 2 हज़ार 3 3 हज़ार पेज की, हम्म। किसी की टेक्स्ट की होती थी 6 6 बुक, 500 500 600 पेज की। और अपन ने 200 पेज में तो पूरा टेक्स्ट खत्म कर दिया, 200 पेज में पोस्टिंग खत्म कर दिया, हम्म। 200 पेज ऑडिट खत्म कर दिया, तो बच्चा तो पागल हो जाएगा ना, इतना कम ऐसा दिखेगा उसको। हम्म। तो बच्चा खुश हो गया, इतना कम कंटेंट और क्वालिटी वाला कंटेंट मिल रहा था कि पूरा कवर। तो बच्चा अच्छा जुड़ गया मेरे से। और तब कोविड आ गया था, कोविड आते ही मेरा वीएसआई में काम बंद हो गया था, वहां पे पढ़ाना बिल्कुल ही बंद, मतलब सैलरी वगैरह जो भी आती थी, मतलब फीस जो आती थी वो बंद हो गई। अब तो मेरे को कुछ स्टार्ट करना ही था, वापस बंद हो गया तो फिर मैंने एससीएमपी का बैच लॉन्च कर दिया था। हम्म। एससीएमपी का बैच लॉन्च किया, अजय ने एफआरएसएफएम का कर दिया मेरे भाई ने, उसका भी रैंक हम्म। बना गया था, उसका भी सीए हो हम्म। गया था, और हमने स्टार्ट कर दिया तो था। एक बात बताओ, फिर अभी इसमें यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, मेरे को साक्षी और शरद से भी बाद में पूछेंगे उनके इंडस्ट्री के बारे में, बट आप एक बात बताओ कि अगर कोई टीचिंग का बिजनेस शुरू करता है अभी, 2 साल या 3 साल में ऑन एन एवरेज वो कितना पैसा कमा सकता है, अज्यूमिंग कि वो 5% मार्केट शेयर कैप्चर कर ले? और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दो पर सब्जेक्ट या तो कितना कमा सकता है ऑन एन एवरेज? देखो, अगर क्वालिटी है ना हम्म। तो टीचिंग में एंडलेस स्कोप है। सीए में अगर बताए, सीए की बात करूं मैं, हाँ। अगर वो मान लो पूरा सीए फाइनल स्टार्ट कर ले, या सीए इंटर पूरा स्टार्ट कर दे मान लो, हम्म। तो 80 90 करोड़ तक जा सकता है उसका टर्नओवर आराम से, अस्सी सौ नब्बे करोड़ तक भी करोड़ जा। हाँ, साल का कैसे? 100 करोड़ इसका भी जा। ब्रेकअप बता सकते हो, कैसे कैसे होगा ये? मतलब ऐसा मानो एक सब्जेक्ट का है ना मार्केट पूरे साल का, सीए फाइनल का बताऊं मैं, हाँ। तो 25 हज़ार क्लास का होता है, 25,000 रुपए? पूरे और 25 हज़ार क्लास अच्छा, 25,000 क्लास। ओके। एक साल का ओके। मार्केट अगर देखा जाए तो हम्म। 25 हज़ार क्लास का होता है हम्म। लगभग, देखा जाए सभी का, टीचर का, छोटे मोटे सब हम्म। टीचर का मिला के, टोटल मिला हम्म। के। अब 25 हज़ार में आपका कितना मार्केट शेयर है, 30% है, 20 है, 25 है, या नहीं, 50 है, मैं ये आपको समझा नहीं, पता। मतलब आप क्या बोल रहे हो? 25,000 क्लासेस एज इन क्या बोल रहे हो आप? 25,000 क्लास सीए फाइनल की एक सब्जेक्ट की साल में बिकती है, सेल अच्छा। होती है। ओके। ओके। ये है एक एवरेज नंबर जो पूरी ओके। इंडस्ट्री का है। ओके। सीए में फिर भी कम है, सीए फाइनल में 25 हज़ार है, सीए हम्म। इंटर में ये नंबर डबल है, 50 हज़ार मान लो। ओके। ओके। फाउंडेशन का तो मुझे पता नहीं हम्म। है। हम्म। और साइंस में ये नंबर लाखों में है, साइंस में होगा तो टर्नओवर मैंने हम्म। बताया ना आपको, 500 करोड़ हाँ। 1000 करोड़ भी जा सकता है, जो भी है हाँ। वो कोई लिमिट नहीं है। करेक्ट। पर सीए में क्या है, बच्चे का मैं आपको पता है इतना नहीं हाँ। है, हाँ। क्योंकि यहाँ क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन वगैरह नहीं है यहाँ। अगर गवर्नमेंट वाला केस आ जाए तो यहाँ भी लाखों के बच्चे आ जाएंगे, हम्म। यहाँ वो केस नहीं है। तो इस तरह से होता है। हाँ, बस क्वालिटी क्वालिटी भी डिपेंड करता है, अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है ना यहाँ पे, तो हम्म। कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे इंटर का मार्केट बिल्कुल ओपन है, इंटर में क्या है, हम्म। बिल्कुल कचरा है, बिल्कुल भयंकर कचरा, मतलब एक से एक कचरा है। कोई भी सब्जेक्ट का ऐसा नहीं बोल सकते आप अच्छा टीचर है अवेलेबल नहीं है किसी का, एक आध होगा थोड़ा बहुत
बाकी बिल्कुल कचरा है। वही उनको क्या बोलते हैं, इंटर का अगर आप देखोगे ना, पिछले पिछले 3 साल का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट कम है, फाइनल का ज्यादा है। हम्म। जबकि पहले उल्टा हुआ करता था, पहले फाइनल का हमेशा रिजल्ट कम आता था, इंटर का तो ज्यादा। कितना परसेंटेज होता है अभी इंटर एंड फाइनल का? अभी फाइनल का तो जैसे ग्रुप 2 का 22% आया था, ग्रुप 1 का हम्म 10% के आसपास आया था, बोथ ग्रुप का भी 10% के आसपास आया था। हम्म इस बार इंटर का फिर भी इतना ही आया, इंटर का ग्रुप 2 जरूर कम आया, लेकिन इतना ही आया। लेकिन लास्ट के अटेम्प्ट में देखो तो इंटर ग्रुप फाइनल का ग्रुप 2 आया 30%, ओके। जो बहुत ज्यादा होता है। 30% देखो तो बहुत ज्यादा होता है, एक तरीके से रिजल्ट हम्म देखा जाए तो हम्म काफी अच्छा रिजल्ट होता है। और इंटर का काफी कम था, इंटर का तो बहुत ग्रुप का भी एक दो अटेम्प्ट का तो 7% 8% इतना ही गया था। तो इंटर का रिजल्ट कम होने का मेन रीजन ही है, जबकि इंटर में तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने इंटर का देखा ना, इंटर में तो पूरा कॉपी पेस्ट इंस्टीट्यूट करता है, फिगर तक चेंज नहीं करता। कभी कभी तो ऐसे हाल होते हैं इंस्टीट्यूट के जो पेपर आते हैं। हम्म तो इंटर में अभी इतना स्कोप है कि मान लो जैसे आप लॉन्च या कोई भी लॉन्च करे, अगर क्वालिटी दे देना तो मार्केट आ जाएगा अपने आप। बच्चा आजकल क्वालिटी देखता है। आजकल वो डांस वगैरह ये नहीं चलते कि आपने डांस करवा दिया या दो चार जोक मार दिए, वो नहीं। आज क्वालिटी दोगे तो बच्चा आ जाएगा। हम्म क्वालिटी दूसरा, कम कंटेंट, मतलब कम ऐसा नहीं कि आपने उसको ज्यादा ज्ञान दे दिया। 400 हम्म देखो, ज्ञान तो आप कितना भी दे सकते हो। आप डीटी को 1000 घंटे भी पढ़ा सकते हो, समंदर है वो तो। हर सब्जेक्ट समंदर है, एफआर इंडिया समंदर है, कितना भी पढ़ा सकते हो आप। तो हम्म लाखों का ज्ञान तो आप कितना भी कर सकते हो, ज्ञान में तो कुछ वो नहीं है। पर आपको क्या है, टू दी पॉइंट रहना, जितना एग्जाम के लिए काम है। बच्चे का मेन मोटिव कोचिंग लेने का क्या होता है, एग्जाम पास करना। मेरा तो देखो कोई भी है, कोई भी बच्चा हो, जो बच्चा अगर क्लास इसलिए लेता है कि उसको ज्ञान मिलेगा, तो उससे हम्म बड़ा बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है आज के जमाने में। ज्ञान बाद में मिलेगा आपको, ज्ञान जब आप जॉब करोगे, जब 6 महीने का ट्रेनिंग होगा, जो भी होगा, तब आपको ज्ञान मिल जाएगा। तब ज्ञान लेना या आर्टिकलशिप में ले लेना जो ज्ञान आपको लेना है। टीचिंग कोचिंग जाने का मेन मोटिव ये होता है, मेन पर्पस क्या, तो कोचिंग वालों का पढ़ाने का उनका क्या मोटिव होता है कि बच्चा पास करे। और जो पढ़ने वाले हैं, उनका क्या मोटिव है कि एग्जाम पास हो जाए। तो मोटिव तो ये होता है कोचिंग का, कोचिंग देने वालों का भी और लेने वालों का। राइट। बंदे ने ये सोचा कि मैं तो ज्ञान लूंगा, 300 या 400 घंटे की क्लास लूंगा, वो सीए फाइनल इस जमाने में एक अटेम्प्ट में पास नहीं करता। ये मैं गारंटी से हम्म कह सकता हूँ। तो आजकल तो क्या है, सारी क्लास बंद हो गई। अगर आप देखोगे ना, मार्केट में जो पहले 25,000 की क्लास हुआ करती थी, जितने हम्म भी टीचर, उन सब की प्राइस 10,000 तक आ चुकी है, 8,000 9,000 ये आ चुकी है पहले तो। दूसरा, जिनके घंटे पहले 400 घंटे होते थे, 400 घंटे आप देखना, आपको पता होगा आपके अटेम्प्ट में 400 घंटे, सबके 200 के अंदर आ चुके हैं। और क्या करते हैं टीचर, 280 घंटे का बैच बनता है, दिखाते 220 है, जानबूझ के कम दिखाते हैं। उनको पता है 280 दिखाएंगे तो बच्चा नहीं लेता। बच्चा आप हम्म समझदार हो, पहले उल्टा था। पहले देखता था 400 घंटे किसका है, 500 घंटे किसका है, जिसका ज्यादा है उसका लेता था। जैसे एक टीचर हुआ करते थे डीटी में, 6 7 बुक पढ़ाते थे, और उनका क्लास चलता था 400 500 घंटे, सब पागलों की तरह जाते थे और सब बुरी तरह लाइन से फेल होते। तो क्या था, मेरे को भी क्या है, मैं जब पढ़ता था ना, मैं तो सेल्फ की थी मैंने डीटी पूरी की पूरी 15 दिन के अंदर, थोड़ा थोड़ा करके। अब मेरी फर्म में पढ़ते थे उनसे, और ज्ञान, फिर ज्ञान भी पेलते थे, वो ज्ञान पेलते थे कि देखो क्या है ये, कितना बढ़िया प्रॉब्लम बताया। उनके नंबर आए डीटी में 40, और मेरे ऑल इंडिया हाईएस्ट आए थे उस अटेम्प्ट में। जो मेरा वो अटेम्प्ट था ऑल कितने इंडिया हाईएस्ट आए थे। कितने नंबर थे? उस अटेम्प्ट में 74 कुछ हाईएस्ट गए थे, वो मेरे गोल्ड अच्छा। मेडल मिला था मेरे को। ओके, वाह। तो उनके 40 आए। तो मुझे समझ में आ गया था क्या, ऐसे ही मैं क्या बस में पढ़ता था, जब मैं जाता था ना आर्टिकलशिप, तो बस में पढ़ता था, जाते आते वक्त जाते वक्त, खड़े होके, वो जो लो फ्लोर बस होती है उसमें। तो हम्म वहां भी मैं देखता था ना, मैं क्या है, मेरे पास इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट था, कोई नोट्स वगैरह तो आते नहीं थे, या तो इन टीचर्स की बुक आती थी 5 5 6 6 बुक, या स्टडी मेट। मैं स्टडी मेट से पढ़ता था, वहां कभी कभी कुछ स्टूडेंट मिल जाते थे, हम्म तो बोलते थे आप ये डीटी किससे पढ़ रहे हो, या आपको तो उस टीचर का लेना चाहिए, आप पास कैसे हो जाओगे, ऐसे ऐसी बातें करते, मैं सबको इग्नोर करता रहता। एक बात बताओ, इसमें अगर आप 10,000 रुपए की एक प्राइस बेच रहे हो एक लेक्चर, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होता होगा, कॉस्ट ब्रेकअप कितना होता होगा? तो या ये अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हम्म फैक्टर्स है इसमें। हम्म कुछ टीचर्स एजेंट से सेल करते हैं, हम्म एजेंट की, तो एजेंट कमीशन लेता है 30% 40%। कुछ टीचर तो एजेंट को भयंकर कमीशन बांटते हैं, जैसे एजेंट कुछ मतलब कौन होते हैं ये लोग? एजेंट्स होते हैं काफी सारे, मतलब जैसे मान मतलब लो, वो ऐसे टेली सेल करते करेंगे वो? जो 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 लोग पहले वर्चुअल क्लास चलाते थे ना, हाँ। ये सब बन गए अब एजेंट, क्योंकि वर्चुअल क्लास तो बंद हो गई अब। हम्म तो इन्होंने सबने एजेंट वाला धंधा खोल लिया। एजेंट वाला धंधा क्या करते हैं, ये 30 40% कमीशन लेते हैं। हम्म तो जो बड़े टीचर्स हैं या कुछ टीचर्स हैं ऐसे, जैसे मान लो 15,000 की प्राइस है, वो 50% कमीशन एजेंट को बांट देते हैं। हम्म एजेंट को 50% कमीशन बांट दिया। एजेंट क्या करता है, बच्चों को कमीशन बांटता है। एजेंट क्या करते हैं, ये एजेंटों का काम क्या होता है, जैसे मान लो एक बच्चा है मेरी क्लास लेने का है, मेरे साथ तो काफी होता है सर। तो एजेंट उसको गुमराह करता है, बोलता है कि आप इसकी क्लास मत लो, इसकी तो बेकार क्लास है, आप तो इन, जो कमीशन ज्यादा देता है वो उसकी क्लास को चिपका देता है। हम्म कुछ बच्चे तो ऐसे पागल बन जाते हैं, फाइनल वाले फिर भी कम बनते हैं, पर इंटर वाले तो भयंकर ऐसे बन जाते हैं पागल। तो एजेंट का कमीशन जाता है। अब एजेंट का कमीशन 10% भी हो सकता है 50% हो।
तो मैंने बताया कुछ टीचर तो 50% बांट देते हैं, 10,000 की क्लास में 5,000 रुपए एजेंट को देते हैं। उसके बाद उसके अलावा क्या कॉस्ट होते होंगे फिर? जीएसटी का पेमेंट जाता है। हम्म कुछ टीचर तो जीएसटी में भी क्या करते हैं, आप जीएसटी में भी कुछ तो क्लास दिखा देते हैं, कुछ बुक्स दिखा देते हैं, तो हम्म बुक्स जिन्होंने दिखाई बुक पे जीएसटी नहीं लगता, ऐसा भी कर। हम्म कुछ इसको भी क्या कर देते हैं, वैसे तो ये कंपोजिट सप्लाई होती है, तो जीएसटी का प्रोविजन होता है, कंपोजिट मिक्स क्या बोलते हैं, मिक्स सप्लाई होती है, लेकिन कुछ कंपोजिट दिखा के इसको 60-40 कर देते हैं। 60-40 मतलब 60% क्लास दिखा दी, 40% बुक दिखा दी, तो ऐसा फर्जीवाड़ा भी करते हैं। तो देखो वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जीएसटी किसने बचाया, किसी ने नहीं बचाया, किसी ने ईमानदारी से दिया। 18% जीएसटी की बात हो गई। कमीशन, एजेंट कमीशन डिपेंड करता है कितना भी जा सकता है। मैंने बताया मिनिमम आजकल जो बड़े टीचर्स है, छोटे टीचर्स कैसे भी हैं, छोटे टीचर भी बड़े टीचर भी 40-50% देने लगते हैं, 30-30% तो देते ही हैं सब। तो ये एजेंट वाला केस होता है, जबकि एजेंट को किस बात का कमीशन, इस चीज में कोई कमीशन की बात ही नहीं है। तो हम तो हमारे तो क्या है, ऐसा केस होता नहीं है। बाकी मैंने बताया कि ऐसा होता है, एजेंट वाला केस होता है। दूसरा जीएसटी हो गया, तीसरा बुक्स की कॉस्ट आ गई, बुक्स की प्रिंटिंग की कॉस्ट आ गई। चौथा पेन ड्राइव जाती है तो पेन ड्राइव की कॉस्ट आ गई, अगर पेन ड्राइव जाती है तो 300-400-500 रुपये गॉट जो इट। भी पेन ड्राइव, ये कॉस्ट होती है इसमें मेनली। एक दो कॉस्ट और होती है, वेबसाइट पे जो पेमेंट गेटवे है, पेमेंट गेटवे के चार्ज होते हैं। वो तो 0.5 to 1% होगा, राइट? हाँ, वो भी देखो डिपेंड करता है टीचर्स, जैसे मेरा पहले लगता था स्टार्टिंग जब मैंने करी थी 2%, फिर मैंने उसको करवाया 0.5, अब मैंने करवा लिया फ्री, अब मेरा पूरा फ्री है अच्छा, टोटल। फ्री तो आपका टर्नओवर भी ज्यादा है ना, इसीलिए तो फ्री है आपका, बाकी बैंक सबका बैंक टर्नओवर थोड़ी इतना ज्यादा है। बैंक वालों ने फ्री कर दिया। हाँ, तो आपका कनेक्शन कैसा है या आपका टर्नओवर वगैरह है, उस पर डिपेंड करता है, तो ये फैक्टर्स कनेक्शन पे नहीं, डिपेंड करता है। टर्नओवर, कनेक्शन नहीं, टर्नओवर की बात है। आपका तो अगर ये, मल्टी करोड़ में टर्नओवर होगा तो ऑफकोर्स फ्री करवा ही और देंगे। इसके अलावा इंक्रिप्शन चार्ज लगते हैं, इंक्रिप्शन चार्ज भी हाँ लगते हैं, हाँ। और जो स्टाफ वगैरह का चार्ज है वो लगते हैं, ये सब चीजें लगती हैं। और अगर आप मान लो टेस्ट वगैरह देते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह, उसके चार्ज लग जाते हैं। तो ये चार्जेस अलग अलग चीजों तो पर डिपेंड कितना करते प्रॉफिट कितना होता होगा परसेंटेज वाइज? हैं। देखो प्रॉफिट 90% भी हो सकता है, हम्म मैक्सिमम 90% हो सकता है, ओके। मिनिमम तो 20 देखो में? एजेंट के कमीशन पर डिपेंड करता है, तो 30% भी जा सकता है, अच्छा, 30, ओके, 40। गॉट इट, हाँ, गॉट इट। वेरी 30 इंटरेस्टिंग, से 90 का रेंज है। गॉट इट। वेरी इंटरेस्टिंग, परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर, काफी मतलब इंसाइट्स मिले मेरे को भी। विपिन पूछ रहा है सर रेवेन्यू कितना है आपका? एक सवाल आया है चैट बॉक्स में, आपको कुछ बताना है क्या इस पे? नहीं नहीं, ये चीज तो ज्यादा हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, चलेगा। कुल ये तो आई, लोग, सॉरी, नहीं लोग तो बोलते हैं- आजकल रेवेन्यू की इन्फॉर्मेशन तो आरटीआई से आ जाती है। हाँ काफी लोगों ने तो मेरी क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम जो है ना, मेरी कंप्यूटेशन रिटर्न ऑफ इनकम की आरटीआई लगा रखी है, पता नहीं कितनों हाँ ने मंगवा रखी है। हाँ। जबकि वो पागलों को भी ये नहीं पता कि मेरी फर्म वगैरह या कंपनी वगैरह बनी हुई है, मेरी पर्सनल आईटीआर में थोड़ी दिखाऊंगा। पर्सनल आईटीआर में तो खाली मैं सैलरी उठाऊंगा या प्रोफेशनल फीस उठाऊंगा, हाँ, ये राइट, कितनों ने मंगवा रखी है। नहीं, सही है, सही है। Cool, I think thank you so much for the granular insights. Sakshi, moving to you, like tell us more about how much can a creator with 1 million followers. Firstly, heartiest congratulations for like crossing 1 million followers in just 4 months, which is commendable. I mean, I've never seen a creator crossing 1 million followers in less than 4 months. I know it's so difficult to like cross like even 100,000 and all. So tell us more about how much a creator can charge at that scale, and what is the entire unit economics of a business in content creation. थैंक यू सो मच। सी अगर हम लोग कॉस्ट का बात करें ना, तो कॉस्ट तो सी दैट कैन बी एज मिनिमम एज 5,000 ऑल्सो। मतलब आपको एक फोन चाहिए, अगर आप बस आपके पास फोन है, आप अगर नॉर्मल एकदम, एक होता है ना कि आपके पास क्वालिटी कंटेंट हो, तो आप जीरो कॉस्ट पे भी स्टार्ट कर सकते हो। यू जस्ट नीड अ फोन। हम जिस पोजीशन में बैठे हुए, बस यू डिलीवर योर कंटेंट वेल। तो हो सकता है आपको ना कोई एडिट्स की जरूरत हो, ना कोई कुछ कुछ लाइटिंग की जरूरत हो, कुछ और। तो हो सकता है वो आपको एकदम आप जीरो पे भी स्टार्ट कर सकते हो। बट एक बार एक बेसिक्स लेके चले, तो अगर आपके पास एक अच्छा फोन है, उसके अलावा सी कैमरा पे आई डोंट थिंक स्टार्टिंग में हम लोग को बहुत ज्यादा स्पेंड करने का जरूरत है। फोन का कैमरा इज गुड इनफ। उसके अलावा अगर आपको जैसे, एक हो गया ग्रीन स्क्रीन। अगर आप नॉर्मल मतलब इफ यू हैव सीन माय वीडियोस, तो आई चेंज माय बैकग्राउंड वीडियोस में, तो उसके लिए आई नीड अ ग्रीन स्क्रीन। तो आपको एक ग्रीन स्क्रीन में इन्वेस्ट करना होगा, एंड दैट वुड कॉस्ट अराउंड 1100-1200 मैक्सिमम, इतना। उसके अलावा लाइटिंग के लिए, इफ यू नीड अ गुड लाइटिंग, तो आप एक रिंग लाइट पे इन्वेस्ट कर दे, तो फिर उस पे हो गया वही 1,000 रुपीज। ये हो गया। इसके अलावा आई डोंट थिंक स्टार्टिंग में कुछ भी कॉस्ट लगेगा। तो ऑल टुगेदर 3-4 थाउजेंड में आप मिनिमम एक स्टार्ट कर सकते हो। मतलब उतना आप, अगर आप
उससे ज्यादा नहीं लगेगा। टॉकिंग अबाउट अगर रेवेन्यू का बात करें, सी ऐसे तो 1 मिलियन पे मेरे जो फिगर्स हम सुने थे वो तो बहुत ही ज्यादा था, बट आई हैव नॉट रीच अभी बहुत उस पे कितना वो है। कितना सुना था? मतलब इट्स लाइक महीना का 20-25 लाख तो ऐसे ही आ जाता है। आई हैव हर्ड ऐसे प्रॉफिट, Yeah, जस्ट yeah. प्रॉफिट, लेकिन वो फिगर बहुत दूर रहता है। मतलब उसके लिए यू हैव टू बी इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको अपना क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने का जरूरत है। इट्स नॉट लाइक आप सी द थिंग इज आई आई रीच्ड यहाँ पे 4 months, बट आई बीन इन द इंडस्ट्री जस्ट फॉर 4 months। तो अभी क्या है ना कि आई एम जस्ट बिल्डिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट रीच्ड अ पॉइंट की आई कैन चार्ज वॉट एवर आई वॉन्ट। बट एक आप अगर 1 मिलियन के आसो तो अराउंड आपको 2-3 लाख, 2 to 3 लाख आप एक चार्ज कर सकते हो, मतलब एक वीडियो के लिए, Okay, got it. मतलब एक वैसे करने के लिए। बट वो डिपेंड, वो भी करता है कि आपका फॉलोइंग कैसा है, इंगेजमेंट कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यू हैव टू गिव अ वीडियो फॉर, अगर आप एक ब्रांड को लैप कर रहे हो तो 1 लाख में भी आपको करना होगा। 1 के नीचे तो जनरली नहीं जाएगा। अब उसमें आपका कभी कभी होता है कि बीच में कमीशन आ जाए अगर आपको कोई एजेंसी के थ्रू आए तो। बट 1 तो एक आप 1.5 तो आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आप 1 मिलियन फॉलोअर्स पे हो तो उतना कर लो। बट देन अगर आप मतलब इट्स लाइक ना, अगर 1 का नहीं भी सोचे कि 500-600 के अराउंड भी है ना, तो भी अगर आप मंथ में मतलब आई थिंक आपका रेंज अगर नहीं होता है कि आप 50-60 भी कर रहे हो एंड देन यू डू 2-3 वीडियोस एक मंथ में, मतलब बिकॉज आप अगर वो भी रहेगा ना कि आप वो तो आप एक वीडियो का चार्ज हुआ, उसके बाद आप कितना वीडियोस एक मंथ में डाल रहे हो। इट्स नॉट लाइक आप सिर्फ एक ही डालोगे एंड इट्स नॉट लाइक 30 वीडियोस भी डाल दोगे, वो चीज रहता है। तो आप कितना क्वांटिटी जा रहा है आपका वीडियो, क्या फ्रीक्वेंसी पे आप वीडियो पोस्ट करते हो, उसके हिसाब से आप कितना कोलैबोरेशन कर सकते हो, कितने कंपनीज को आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो सब के हिसाब से। तो वो डिपेंड करता है, वो कोई मंथ पे आपको 10 लाख भी हो सकता है, कहीं पे 3-4 लाख भी हो सकता है, वैसे करके डिपेंड करता है कि एक फिक्स नंबर नहीं है। वो सबसे बड़ा चीज है Got it. कंटेंट, नेवर फिक्स्ड अमाउंट की एक कि आपको इतना मिल ही जाएगा। Right. And what was your hack of growing on Instagram? What do you think worked for you, which really made you cross 1 million followers? Anything specific? सी वन थिंग, एक तो था कंसिस्टेंसी, एंड देन वो कंसिस्टेंसी के साथ अंडरस्टैंडिंग कि मेरा कौन सा टाइप का वीडियोस माय ऑडियंस इज लाइकिंग। मतलब like before I started creating, उसके पहले भी I created 20 to 30 piece of content and then I started posting on Instagram। तो वो 20 to 30 में I did not get any reach, 3-4 thousand followers होंगे कुछ, and then but वो 30 piece of content में 1 या 2 वीडियो went viral, मतलब या not viral but थोड़ा सा better reach मिला, तो I started more creating more content वही same pattern में, and then वो pattern से ही I started getting more reach। तो Got I it. understood कि लोग को ये टाइप का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वैसा कंटेंट I started posting Got it. उसके Fair. वजह से। Got it. Fair. Cool. Interesting. Sharad, over to you. I think you've been silent from a long time. Tell us more about the salary which you are getting at the startup right now, and why did you switch from BCG, which is like one of the most lucrative companies to work at, to an early stage startup? So, how was the salary shift, and what's the experience at a startup versus a consulting firm? Yeah, so answering sequentially, first the salary part. So the salary at consulting is, so we start at a low level as compared to MBAs, because they obviously come after doing an MBA, they have a work action, etc., etc. So they start at some 30 odd lakhs, and then they gradually move towards 40, 50, and then 60 and upwards. CAs, if we directly hire into BCT, we get the starting salary at 18-20 lakhs, then it goes up to 24 in the second year, then it goes up to 30, and then 40, and then upwards. So I was there first, after 1 year it was 24, then it was supposed to be some 35, 40 lakhs, and I'm getting the same at the startup. So since the salary was on the similar level, so I thought ki this will be this is in par with what I'm getting at BCT. So money is not something which is a roadblock right now. So BCT is obviously something which everyone looks forward to. People go to MBAs and then aim for BCT. So it is something which
everyone look forward to being into. But what happened with me, so it was very subjective. My call was very subjective because 2 years I always had a plan of doing BCT for 1.5 2 years, because उसके बाद दो चीजें होती है, एक your salary grows exponentially एंड उसके बाद बाहर मार्केट में कोई और वो मैच कर नहीं पाएगा। तो इफ यू आर स्टैंडिंग एट 50 60 और बाकी बाहर उस टाइम 2 3 years एक्सपीरियंस, नो वन इज गोइंग टू ऑफर यू दैट मनी। तो बाहर वैसा मैं पैसा नहीं मिलता, देन आई वुड हैव बीन लॉक्ड इनसाइड बीसीजी एंड मैं स्विच नहीं ले पाता बिकॉज मनी एक रोड ब्लॉक बन जाता बहुत बड़ा। सो आई थॉट कि दिस इज द टाइम व्हेन आई कैन स्विच। सेकंड रीजन वाज कि एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि मेरे को खुद का कुछ स्टार्ट करना है डाउन द लाइन। एंड so if you, so all of us have studied SCMP. There is a 80-20 analysis, Pareto analysis. So 80 is what you focus on and 20 is something which can be neglected or something like this. So when I was working at BCT, we were focusing on that 80. The rest of the 20 was something which जिसको हम consulting दे रहे थे वो लोग pick up करते थे, या फिर मतलब the 20 was most of the times very trivial because it is something which is done on the ground जिससे you know what is really happening in the business. 80 पे you are on the face, you are on the surface, you can consult कि ये चीज नहीं सही हो रही तो आप ये करके देख सकते हो, इससे ये हो सकता है। अब वो कैसे करेंगे, कैसे होगा, क्या आउटपुट निकलेगा, दैट इज समथिंग व्हिच we are not there when it actually happens. So I was on a case with SBI. If most of us have heard about SBI, and so current account के लिए they hired us as consultants because they lost their throne to SDFC. तो उनको अपना मार्केट शेयर वापस गेन करना था। तो I was on the project for 3 months and it was 1 year long project. So consulting mate is a feature you get on a project for 3 months, 6 months, 9 months. I was on that project for 3 months and we sort of helped them build up hubs for opening the current account. क्योंकि पहले सब कुछ ब्रांचेस करती थी, वी हेल्प देम ओपनिंग सम हब्स जहाँ पे ब्रांच से पूरा पूरा वर्क एज रिगार्ड्स टू करंट अकाउंट है वो शिफ्ट हो सके हब में, सो ब्रांचेस कैन डू देयर ओन वर्क एंड हब्स के थ्रू इट ऑल बिकम्स वेरी सेंट्रलाइज्ड एंड द प्रोसेस बिकम्स मोर एफिशिएंट एंड डिजिटाइज, जो प्राइवेट बैंक्स कर चुके हैं। तो वी कंसल्टेंट देम ऑन दिस। उन्होंने दिसंबर या जन में 2 महीने का पायलट किया, 2 हब उन्होंने खोले मुंबई में। आई वॉज अ पार्ट ऑफ ओपनिंग दोज पायलट्स, आई वॉज अ पार्ट ऑफ रनिंग दोज पायलट्स, बट 3 महीने हो गए, आई हैड टू चेंज टू अनदर केस। एंड जून जुलाई में व्हेन एसबीआई का कुछ 75 या फिर ऐसा कुछ एनिवर्सरी था, द मैनेजमेंट रीप द बेनिफिट्स ऑफ द हब एंड उन्होंने वैल्यू पोटेंशियल एनालाइज करके दे रिलीज कि हम ऑल ओवर इंडिया 60 और हब्स ऐसे खोलेंगे। तो पूरी मेहनत हमने करी दिसंबर जनवरी में, आई वाज ऑन द केस, में पूरा बैकएंड वाला पीस देख रहा था, बट जब उसका रियल में रिजल्ट निकला इन जून, आई वाज नॉट देयर टू सेलिब्रेट इट। तो दैट इज द बिगेस्ट गैप व्हिच आई फेस्ड व्हाइल आई वाज डूइंग कंसल्टिंग, कि ठीक है जो अपन काम कर रहे हैं उसका वैल्यू जब क्रिएट होगा तो उसका हम्म उसको सेलिब्रेट करने के लिए आई विल नॉट बी देयर। So these were the reasons due to which I thought कि ठीक है, let's make a move. And then there are so many lucrative options to move into. There is PE firm, there is VC. As soon as you step into a consulting firm, बहुत सारे consultants हैं जहाँ से मैसेज आने लग जाते हैं कि यहाँ ओपनिंग है, यहाँ अप्लाई कर दो, and then the CTC figure is so huge कि you are just drawn towards it. 50 crores plus variable, नहीं 50 lakhs plus variable। 3 crores वो अतुल का सुना ना 80 डेट्स से तो हाँ मतलब तो अतुल भाई का टर्नओवर नहीं बताना था अपने को। हाँ तो आई वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स दैट एज वेल, बट वो स्टार्टिंग से तो था कि फाइनेंस में नहीं जाना है, तो आई थॉट कि ऐसा कुछ करते हैं जिससे और ज्यादा लर्निंग होगी, हम्म एकदम वो काम करेंगे। सो राइट नाउ आई एम इन अ फाउंडर्स ऑफिस रोड इन द हम्म स्टार्टअप वेयर आई एम वर्किंग एट। तो द रोल इज, मतलब इन इफ आई डिफाइन इन वन लाइन, फाउंडर को जो भी चीज प्रायोरिटी पे क्लोज करनी होती है, विच एवर इज अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव फॉर द स्टार्टअप राइट नाउ, वी आर डूइंग दैट। कि founder once the scale of a startup grows, I am working in a startup which is series B funded, तो थोड़ा स्केल अचीव कर लिया स्टार्टअप ने, तो अभी सिर्फ फाउंडर इकलौता सब कुछ नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, तो ही मेक्स अ टीम ऑफ 2 3 individuals who work closely with him on all the initiatives which the startup is working on. So I'm doing what, not exactly what the founder is doing, but I'm doing what the founder wants me to do right now. And I am quite confident कि in 1 year I will be so familiar that I will be doing what the founder will be doing as well. हम्म So this is what the difference is between consulting when you're working in an MNC. yeah You have to work in a mold which has been set over the years, while you're working in a startup or a new found place which is very new and live.
so you can work on your own, you can Hmm. work in your style. And the solutions which we used to work at consulting was very solution driven, very target driven, कि ये करना है, ये slides में दिखाना है, ऐसी slides बनानी है, इतना value create करना है. Hmm. अभी we are doing it for our own, क्योंकि मेरे पास भी ESOPs हैं, मेरे को भी उनकी वैल्यू बढ़ानी है. So Hmm. there are stark differences between working at an MNC and a startup. अभी मेरे को 1 ही महीना हुआ है, 1.5 months, so I have a few words only. I am short of words as far as startup का experience is concerned, Hmm. but this is what Yeah, I can say. maybe if I can add more on the startup vibe, because like I mean I have been into the VC ecosystem, and I think there are two questions in the chat box, one by Akshat Jain and one by Abbas, कि आप आपके startup पे भी बताओ. So see, I'll tell you guys, so startup experience is something which is very crucial for all of us, in the sense that वो 0 to 1 journey जो होता है ना, वो सीखने मिलता है. So for example, in a corporate, if I am responsible for a finance function, in a startup I'll be responsible for almost everything, anything and everything, be it marketing, sales, operations, HR, everything. So that is something which you'll get to learn in a startup. And apart from that, you'll also get to know, and like you'll get to take ownership, and you'll be the one who is like going to make an impact. In a corporate, what will happen is that you won't be able to make those decisions, or you won't be able to bring that impact, because there's a lot of hierarchy, there are a lot of like seniors whom you have to consult before taking a decision, versus in a startup where you can take the decision and the impact will be shown directly once you take that decision. So that is another advantage. I think there are few questions about my startup. So I think, so we are into finance upskilling. So basically what we are trying to do is bridge the gap between job readiness and like making the candidate job ready versus what is taught in academia. So we try to give courses for people who want to get a job in finance, specifically faculties like even Sharad, one of them, who teaches about PowerPoint presentation, skills like advanced Excel, financial modeling, uh, group discussion, personal interviews, LinkedIn branding, and all of these topics are taught. And then we help all the people get placements, because that is the bigger problem in my opinion, where people are not taught a lot of things in their academia, be it CA, CFA, ACCA, or BCom for that matter, and then they are not able to get a job because of all these skill sets which they lack. So that is something which we have started at Kager, and that's why we have also, by the way, launched the Career Kickstarter program, which I'll shed more details on, where we are going to train on GDPI, resume building, and LinkedIn branding, which is starting from 5th of February. So that is something which is about Kager and the startup experience. I think one, before we take the questions from all the people, one last piece of advice within a minute, if all three of you would want to give to all the students, that'll be very helpful. And then we can take all the questions from the audience as well. So last piece of advice, Sharat, Sakshi, Atul, in just 1 minute. Sharad, I think I. Okay, so I'll start. So right now, I believe that most of the people who are on this call must have just qualified their CAs in Hmm. November 23. So congratulations all of you. And right now you will be in a position जहाँ पे uh, there will be a lot of people जिनको जॉब्स मिलने मिलने लग गए होंगे ऑलरेडी बिग फोर में काम कर रहे होंगे, Hmm. कन्वर्ट कर लिया, कुछ ना कुछ जॉब मिल गया, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंपटीशन. तो वैसे ही मार्केट में बहुत ज्यादा है, एंड राइट नाउ द सीन ऑफ द मार्केट इज थोड़ा सा डाइसी, क्योंकि Hmm. थोड़ा सिंस यूएस यूके का प्रेशर है वो इवेंचुअली इंडिया पे भी आ रहा है. सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, डरना मत अगर तुम्हारे को इन्हें मतलब एकदम इवेंचुअली जॉब नहीं मिले, बिकॉज एज साक्षी मेंशन पहले कि सीए बन चुके हो, तो इट इज नॉट कि तुम रोड पे रहोगे या फिर कुछ ना कुछ जॉब नहीं मिलेगा. यू विल गेट समथिंग इवेंचुअली. एंड नॉर्मली ये साइकिल भी ऐसे चलता है. आफ्टर रिजल्ट स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते बहुत चीजें एकदम पेस में मूव करेगी, जहाँ पे लोग सीवीज मंगाएंगे, रेज्यूमे भेजोगे तुम यहाँ वहाँ सब जगह. अभी ये जो पीरियड होगा 15-20 दिन का, चीजें एकदम से स्टॉप हो जाएंगी, कहीं भी कुछ नहीं चलेगा. तुमको लगेगा कि मैंने सीवी इतने दिन पहले भेजा था, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, क्या करूँ, मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा. दीज 15-20 डेज विल बी वेरी स्लो. एंड देन फिर से 1-2 हफ्ते ऐसे आएंगे जहाँ पे चीजें इतनी जल्दी मूव होंगी कि सबकी हायरिंग हो जाएगी. सो राइट नाउ व्हाट यू शुड फोकस एट इज, फर्स्ट मेक अ डिसीजन इन योर माइंड कि तुमको क्या करना है. बी क्लियर एट दैट, कंफ्यूज मत हो कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वो भी करना है, ये वो कर रहा है, मैं भी ये कर सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट टू डू, एंड देन थोड़ा थोड़ा जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, क्योंकि अभी यू वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ. जब अपन 10-12 के प्रोजेक्ट बनाते थे, कितना मेहनत करते थे वो सारे प्रोजेक्ट बनाने में, इतना प्रेजेंटेबल बनाने में. सीए की कॉपीज में भी अपन ने एक कोई ना कोई तो सेशन अटेंड किया ही होगा कि कैसे आंसर ज्यादा प्रेजेंटेबल लिखें. तो अभी वर्क ऑन दैट, 15-20 दिन वर्क ऑन योरसेल्फ, वर्क ऑन हाउ यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ बेटर. उसी की वजह से तुम्हारा अगला 1-2 साल डिसाइड होगा. तो वर्क ऑन योरसेल्फ. इंग्लिश इज समथिंग विच इज नॉट अ रोड ब्लॉकर, बट प्रैक्टिस इट इफ यू कैन.
and just be confident. Okay, So you Sharad, already have a degree. yeah. So work on that so people can enroll for the career Kickstarter program. उससे work हो जाएगा. हाँ, मतलब that is the shortest and best possible way. क्योंकि अभी 15-20 दिन slow भी चलेगा सब, and इसमें you can use what Kushal is offering. Thanks, man. I was just pulling your leg. Sakshi and Atul, over to you. I absolutely agree with what Sharad said, and I would just like to add, as he said ना कि अभी बहुत सा फास्ट मूव करेगा कि people will be getting job. आप लोग का 4 लोग का ग्रुप है तो 3 को हो सकता है ऑफर्स पहले से ही आ गए, एक को 2-3 ऑफर्स है. उस टाइम पे अगर आपका जॉब का मन नहीं है ना स्टार्टिंग से, तो बस दूसरों को देख कैसे मत करना कि सब जॉब पे जा रहे हैं तो आई विल ऑल्सो गो फॉर अ जॉब. सब प्रैक्टिस करे, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे को जॉब नहीं करना था, लेकिन क्योंकि सब जॉब कर रहे थे इसीलिए मेरे माइंड में भी ये आया कि नहीं तो मेरा स्टार्टिंग से था कि हम जॉब करेंगे नहीं. बट देन सब क्योंकि करे से देन आई अपने आप को ये करके कि नहीं एक बार जॉब ट्राई कर लेते हैं. तो अपना अगर बहुत ज्यादा दूसरों के डिसीजन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मत होना. जस्ट स्टिक ऑन योर डिसीजन कि आपको क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेना जो भी आगे करना है. Thank you so much. That is a wonderful piece of advice. Atul sir, over to you. हाँ देखो, सबसे पहले तो ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि चलो अटेम्प्ट लग गए काफी सारे, या काफी एज हो गई तो अब जॉब नहीं मिलेगी. जॉब तो आसानी से मिल जाती है. बिग फोर वाले और जो बैंक वाले हैं ना, बैंक HDFC वगैरह है या बिग फोर वाले, इनमें तो लगभग सबको जॉब दे देते हैं. इनको तो कमी पड़ रही है एम्प्लॉयज की, तो जॉब तो आसानी से मिल जाती है इन दो कंपनीज में, एक तो बैंक वाले सेक्टर में और एक बिग फोर में. तो जॉब वाला तो इशू आता नहीं है चाहे कोई भी हो. हाँ, रैंकर जो होते हैं, रैंकर में भी क्या है कि स्टार्टिंग के जो 5-7 रैंकर है या 10 टॉप 10 तक मान लो आप, जिनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है कि आप हिंदी वगैरह बोल सकते हो. वैसे तो इंग्लिश में कोई जरूरत नहीं होती. मैंने बाकी भी देखे हैं, बाकी मतलब जिनकी नॉर्मल रैंक आई है, या जो पास भी हुए हैं, उनमें कुछ कंपनीज है, जैसे एक ITC है या 2-3 कंपनीज है. तो ऐसी कंपनी को चूज भी क्यों करना जो टाइम पास करवाती है. तो उनको उनके अलावा बाकी कंपनीज में तो जैसे BCG वगैरह ज्यादा बड़ी कंपनीज है, 4-5 कंपनीज है, उनको छोड़ के तो आप हिंदी में आसानी से इंटरव्यू वगैरह दे सकते हो. काफी सारे लोग बोलते हैं इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए. कुछ भी काम का नहीं होता टाइम पास. आज के जमाने में जब से मोदी सरकार बनी है 2014 के बाद, तो उसके बाद तो ये बिल्कुल ही खत्म सा हो गया इंग्लिश वाला केस. हाँ, उससे पहले क्या था, आपको पता है सरकार भी क्या थी या जो भी था, सब कुछ इंग्लिश में चलता था. हिंदी वगैरह तो खत्म सी हो गई. पर आज के जमाने में वो मोदी जी भी हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं और सब जगह हिंदी प्रमोट हो रही है. तो आसानी से आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हो, कोई इशू नहीं है. इसके अलावा तो आप अगर मान लो कोई तमिल के, तो तमिल वगैरह में भी इंटरव्यू दे सकते हैं. जो इंडिया की लैंग्वेज है, जो हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, आप उसमें इंटरव्यू दो आसानी से. इंग्लिश वगैरह टाइम पास है, इंग्लिश वगैरह सीखने का कोई जरूरत भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो. हाँ, आप स्पेशली आपका तो मन है कि मेरे को तो ITC में जाना है या मेरे को BCG में जाना है, अब उनका काम इंग्लिश का है, उनके फॉरेन क्लाइंट्स है, जो भी इशू है उनका, तो वो अलग बात है. बाकी तो हिंदी से काम चल जाता है. काफी सारे लोग पूछते हैं हमारी तो इंग्लिश वीक है, या हम गाँव से हैं, या हमको तो बिल्कुल नहीं आती. कोई दिक्कत वाली बात उसमें होती नहीं. तो जब मैं मेरी बता रहा हूँ कि मेरे को तो बिल्कुल नहीं आती, मैं खुद बता रहा हूँ. हाँ, समझना आता है, लिखना वो सब अलग बात है. बोलना बोलना बिल्कुल नहीं आता मेरे को, कि मैं 2 लाइन भी इंग्लिश में बोल सकूँ तो नहीं आता. ना मेरे को सीखने की कोई इच्छा, ना पहले थी ना अब है, ना आगे कुछ काम की. तो इंग्लिश वाला इशू तो है नहीं. आप अपनी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें इंटरव्यू प्रेफर कर सकते हो. कोई कंपनी मना करे तो ऐसी कंपनी में जाना ही क्यों है, जो आपको खुद को रोक रही है आपकी लैंग्वेज में बोलने से. और ये भी है कि अगर आप चाहते हो कि अब आप इंग्लिश सीख जाओगे 1 महीने में 2 महीने में, तो औकात ही नहीं है इस चीज की कि आप कर लोगे. क्योंकि लैंग्वेज ऐसी चीज होती है जो टाइम लेती है. आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है या जो भी लैंग्वेज है, आपने 15 साल 20 साल दिए, जिसको स्टार्टिंग से आपने सीखा है. तमिल वालों ने तमिल को सीखा होगा, तेलुगु वालों ने तेलुगु को सीखा होगा, इधर बाकी लोगों ने सबने हिंदी को सीखा होगा, तो आप इसी में परफेक्ट हो. जो इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं, मेरे को तो वो पहले पहले से पसंद नहीं है. जो हिंदी आती है फिर भी इंग्लिश इंग्लिश करते रहते हैं, मेरे को ऐसे लोग थोड़े से अजीब लगते हैं पहले से. तो पहले से मैं उनसे दूर रहता था. और मैं तो वैसे भी हिंदी में बोलने वाला था, तो मैंने कभी देखा नहीं कि आज के जमाने में इंग्लिश को प्रमोट किया जाता है. हाँ, पहले के जमाने में होता था, और पहले के जमाने के चक्कर में ही ये दिक्कतें होती. लेकिन जब से 2014 के बाद मैंने ये ट्रेंड चेंज देखा है. इंटरव्यूज में भी देखा है. इंटरव्यू में मतलब पहले होता था मना कर दे कि आपको तो नहीं लेंगे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है ना, उसके बाद मैंने ये देखा है कंपनी वाले मना करते ही नहीं. यहाँ कुछ कंपनीज को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, तो वो इशू बिल्कुल नहीं. क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा डाउट इसी के आते हैं, सर आप इंग्लिश नहीं आती है, ये दिक्कत है. तो वो इशू है नहीं. दूसरा, आप अगर इंटरव्यू जॉब में जाते हो तो ऐसा नहीं कि आपको जॉब में इच्छा है नहीं है, जबरदस्ती जा रहे हो. क्योंकि सारे लोग यही करते हैं, जॉब में इसलिए जाते हैं कि चलो दोस्त जा रहा है, ये कर रहा है, और सबसे सिंपल तरीका जॉब वाला.
क्योंकि कुछ मेहनत नहीं करनी, एक इंटरव्यू देना है और आपकी सैलरी स्टार्ट, बस इतना ही काम करना है। और जो सबकी लगती है, मतलब अब 8,000 सीए बनी इस बार, 8700, तो 8700 में ये गारंटी है 8700 की जो बंदे हैं सबकी सबकी जॉब लगेगी, और कोई ना कुछ तो कर ही लेगा। सीए अगर आप बन गए ना कुछ तो आप कर ही लोगे। ऐसा है नहीं कि आप बिल्कुल खाली बैठे रहोगे या टाइम पास करोगे, ऐसा नहीं होगा। 50-60 हजार रुपये, 80,000, 90,000 रुपये महीने के आप आसानी से कैसे ना कैसे करके कमा ही लोगे, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे वो टीचिंग करो, चाहे जॉब करो, चाहे प्रैक्टिस करो, चाहे कुछ भी करो। तो वो तो आप सोचो ही मत कि कुछ नहीं मिलेगा, वो तो बिल्कुल ही केस है ही नहीं। ये बिग फोर वाले, मैं बताऊं, बिग फोर और बैंक वाले ऐसे तड़पते हैं कि कैसे ना कैसे एम्प्लॉइज मिल जाए। 3-4 जनों तो मुझे मैसेज कर रखा है, 2-4 जने और विप्रो वगैरह, इन्होंने कर रखा है, इनके एचआर से मैसेज आ रखा है, आप डाल दो, टेलीग्राम पे डाल दो, हमारे पास वैकेंसी है। तो वैकेंसियों की तो कमी कमी है नहीं, और ना ही अब हिंदी वाली इंग्लिश वाली प्रॉब्लम है। ये दिक्कतें तो है नहीं जॉब वाले, अगर जॉब में जाते हो। बाकी प्रैक्टिस में थोड़ा मेहनत का काम है, प्रैक्टिस मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मेहनत का काम है। वो आसानी से नहीं होती, क्योंकि आजकल जो मार्केट कैप्चर है पहले से बिग फोर वालों ने कर रखा है, बड़ी कंपनीज का, छोटी मोटी कंपनीज का, छोटी मोटी फर्म ने कर रखा है। तो वो तो सबसे खतरनाक काम है प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस में आप आसानी से नहीं जा पाओगे। हम्म। और प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो एक तरीका है कि सीए फर्म ज्वाइन करो और उसके क्लाइंट तोड़ो, बस। या बिग फोर ज्वाइन करो, बिग फोर के क्लाइंट तोड़ो। या इंडिया में बिग फोर पे बैन लग जाए तो फिर प्रैक्टिस में जाने का फायदा होगा। आज के जमाने में प्रैक्टिस में जाने का कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस कर सकते हो, 2-3 साल आपको सीए फर्म में जाना पड़ेगा, या 2-3 साल आपको बिग फोर में जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे लोग, मेरे काफी सारे ऐसे फ्रेंड है जो बिग फोर में गए, क्लाइंट तोड़े और खुद की स्टार्ट कर दी। कुछ सीए फर्म में गए, क्लाइंट तोड़े, खुद की स्टार्ट कर दी। सबको मैंने ऐसे ही देखा है जो प्रैक्टिस में गए। और तीसरा, टीचिंग लाइन में अगर आपको आना है ना, तो टीचिंग में अगर आप सोचो चलो ऐसे ही आ जाएंगे, करोड़ों कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैंने बताया, मेरे को पहले महीने की सैलरी मिली थी कितनी, 11,000 रुपये, 11 या 12 या 14,000। तो इस तरह से स्टार्टिंग होती है। आपको डिप्रेशन जरूर आएगा कि यार वो सामने वाला तो लाख रुपए कमा रहा है, मेरी तो रैंक 1 थी, और मेरे दोस्त तो जो 400 नंबर पे पास हुए थे, उनको 90,000, लाख रुपए मिल रहा था महीने का। डिप्रेशन आ सकता है, किसी को नहीं आता, किसी को आ सकता है। देखो तो आप ऐसा नहीं एक काम करो होता। ना, डिप्रेशन लोगों को अभी आ रहा है 14,000 सुन के, आप मोटिवेट भी कर दो ना, आप अभी कितना कमाते हो, तो लोगों को पता चलेगा मोटिवेशन तो की साइड। तो ऐसा है टीचिंग में, ऐसा नहीं है टीचिंग में आप चल जाओगे 14,000 क्या है वो, ऐसा नहीं है कि वो 14,000 का भी कम हो जाएगा अगर आपकी क्वालिटी नहीं है तो आज के जमाने में। हम्म। दूसरा, टीचिंग में पहले क्या था, जब मैं था आया था तो कंपटीशन बिल्कुल खत्म खत्म था यहाँ पे। खत्म क्यों था? कचरा था पूरा मार्केट, बच्चों को भी पता है, सबको पता है, कचरा। और अब मार्केट चेंज हो चुका। अब जो भी टीचर आता है बुक कम करता है। जैसे बड़े बड़े टीचर्स मैं बता रहा हूँ, उनकी बुक पहले 800 पेज की होती थी, 400 की करती। बुक देख के हमारी बुक 250 है तो 400 कर, मतलब कम कर रहे हैं। पहले जमाना था बढ़ाने का, अब है कम करने का। तो अब जमाना चेंज तो हो चुका है एक तो। दूसरा, फाइनल में तो पूरा कंपटीशन हो चुका है। सीए फाइनल में अच्छे अच्छे टीचर आ चुके हैं, मैं खाली हमारी बात नहीं कर रहा, बाकी और भी काफी अच्छे अच्छे टीचर्स आ चुके हैं। तो फाइनल कंपटीशन वाला हो चुका है। इंटर में मैं अभी भी बोल रहा हूँ, काफी स्कोप है इंटर और फाउंडेशन में। पर उसके लिए मैं आ जाओ क्या इंटर में? आ जाओ आप, कभी भी आओ आप। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। क्वालिटी देनी पड़ेगी। देखो उसमें ये नहीं है कि अपन आ जाएंगे, कोई भी आ जाए, कोई भी आ सकता है, हम्म। पर क्वालिटी देनी पड़ेगी। चाहे वो पास होने वाला स्टूडेंट हो, चाहे रैंक 1 वाला हो। ऐसा नहीं है कि रैंक 1 वाला आ गया तो रैंक 1 वाला चल जाएगा। कुछ रैंक 1 वाले हैं टीचिंग करवाते हैं, या रैंक 2 वाले भी हैं लेकिन चलते नहीं है। तो क्वालिटी के बिना नहीं चल सकते आप, क्वालिटी देनी ही पड़ेगी, तो ही आप टीचिंग में सर्वाइव कर सकते हो। टीचिंग भी सेम प्रैक्टिस जैसा ही है, पर इसमें क्या है, टीचिंग में आज के जमाने में जब से ऑनलाइन हुआ है ना, आप अपने बलबूते पे खड़े हो सकते हो, क्वालिटी देते हो। पहले क्या था, आपको किसी इंस्टीट्यूट को इसको ज्वाइन करना पड़ता स्टार्ट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। अब आप अपने बलबूते पे ऑनलाइन जब से क्लास आई है, खड़े हो सकते। और तीसरा, जो प्रैक्टिस का मैंने बताया, प्रैक्टिस का तो थोड़ा खतरनाक होता ही है। उसमें तो आपको किसी फर्म को ज्वाइन करना बेटर रहता है, किसी फर्म को या बिग फोर को, और वहां से आपको क्लाइंट तोड़ने पड़ेंगे। वो भी आपको क्वालिटी आनी चाहिए, क्लाइंट कैसे तोड़े जाए, उनके क्लाइंट कैसे तोड़े जाए। तो काफी सारे करते हैं वो, जिनको आती है वो तरीका, तो वो करा जा सकता है। बाकी जॉब में भी क्या है, एक तो बिग फोर वाला केस, क्या बोलते हैं, जॉब में बिग फोर है, बिग फोर में काफी काम होता है। सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं होती, शायद सैटरडे तो बिल्कुल नहीं होता, संडे की भी पता नहीं होती नहीं होती। बैंक में काफी वो है, क्या बोलते हैं, अच्छा काम है, मतलब 5 दिन का ही काम होता है। कभी कभी हो जाता है सैटरडे, सेकंड सैटरडे वगैरह। और बैंक में मैंने ये भी सुना है कि काफी सारे, मैंने मेरे दोस्त से सुना है, 2 नंबर की कमाई भी होती है। 2 नंबर की कमाई भी करते हैं, जितनी सैलरी उतनी 2 नंबर की कमाई भी करते हैं। वो कैसे करते हैं मुझे नहीं पता ज्यादा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कंपनी है उनमें भी काम होता है। मैंने ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी बीपीसीएल इनमें काम नहीं होता, इनमें भी वो सुबह से हम पूरी रात तक काम चलता है। तो इनमें भी भयंकर काम चलता है काम। हाँ, एक चीज अच्छा है, जो ये होते हैं ना यूपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, कुछ यूपीएससी कंडक्ट करवाता है एक एग्जाम, जो बच्चों को पता ही नहीं था, सीए वालों के लिए, सीए और सीएमए वालों के लिए। जिसमें मैंने बताया भी था, एक वीडियो भी डाला था हमने। हमारे जो टीचर है सुरेंद्र जी, तो वो अभी आईआरएस ऑफिसर बने हुए हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के, जीएसटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर।
तो वो ऐसे एग्जाम आप दे सकते हो, उसमें काफी ज्यादा फायदा है, वो है आपके लेवल का। अगर आपको मतलब मजा करना है या आपको ऐसा चाहिए, पावर चाहिए, उसमें क्या है, पूरी गाड़ी वगैरह मिल रही है, बंगलो मिल रहा है, आपको IRS ऑफिसर का कार्ड मिल रहा है, कहीं भी दिखाओ तुरंत एंट्री होती है, एयरपोर्ट में चेकिंग वगैरह नहीं होती है। अगर ऐसी चीजें चाहिए, आप पावर चाहिए, आपको किसी की भी कंपनी के CEO से कोई भी मीटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो ऐसे आप एग्जाम दे सकते हो। गवर्नमेंट वाले एग्जाम होते हैं, वो वाले होते हैं गवर्नमेंट के एग्जाम, वो भी दे सकते हो जॉब के साथ साथ। आपको ऐसे एग्जाम की क्या है, वैकेंसी आती रहती है। ऐसा मैं खाली UPSC वाला नहीं बोल रहा कि UPSC वाला ही होता है, और भी होते हैं जिसमें आपको पावर भी मिलती है और काफी ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है, मतलब जिंदगी अच्छी होती है उसमें, वो भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं। हाँ, जो ज्यादा इंग्लिश वाले हैं, जिनको भयंकर इंग्लिश आती है, तो वो ये BCG वगैरह जो 4-5 कंपनीज हैं, इनमें जा सकते हैं। इनके लिए बनी है BCG, ITC वगैरह, 2-4-5 कंपनीज हैं। और मुझे तो पता है कि जो इंग्लिश वालों को ही आप लेती है। आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, वो बताओ एक बार। सब इतना ये सब बढ़िया ऐसे बात करने का, वो एकदम इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये मैंने स्टार्टिंग से मेरा ऐसा ही था। स्टार्टिंग से क्या था मेरा, ये ऐसा नहीं कि अभी आया है, कि अभी आया है, स्टार्टिंग से ही मेरा ऐसा था। तभी मैंने वो CA का 10 से इजी वगैरह ये मैंने बोला था, तो इतना ट्रोल हुआ, फिर भी मैंने बोलता गया, तो ऐसा नहीं होता। वो स्टार्टिंग से, लेकिन वो माइंडसेट हाउ क्या डू है, यू हाउ डू यू डील विद ऑल द हेट और ऑल द नेगेटिव कमेंट्स? वो मेरे को आदत पड़ी हुई थी पहले से। हाँ। क्योंकि मैं जो इंग्लिश वगैरह वाले को, उससे पहले तो मैं मुंह नहीं लगता था। जो मेरे फॉर्म वगैरह में भी होते थे ना, जो ज्यादा इंग्लिश वाले होते थे यार, ऐसा करते थे कि हिंदी आती है, आपस में इंग्लिश में बातें कर रहे हैं बैठे बैठे, मैं मुंह भी नहीं लगता था किसी के ऐसे, मैं सीधा बोल देता था, कुछ ना कुछ लड़ाई हो जाती थी मेरे ऐसे लोगों से। हम्म। इसके अलावा भी मेरी काफी लोगों से मतलब चलती रहती थी यार, ऐसे लोगों से बनती नहीं थी कभी। तो तब से कॉन्फिडेंस। और क्या है, मैंने बताया पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स का इतना सुना है मैंने, मैं मतलब एक तरीके से सपोर्टर हूँ मैं किसी पार्टी का या किसी का भी हूँ। तो मैंने इतने वीडियोस देखे हैं कि मुझे काउंटर करना आता था इन चीजों में, पॉलिटिक्स वगैरह की चीजों में। तो जो मैंने बताया ना, हमारी फर्म में एक सैटरडे क्लास होती थी, वहाँ हमेशा ये टॉपिक होते थे। तो इस चीज में मैं हमेशा काफी परफेक्ट बोलता था। और इस सेशन वाले इस टाइप की चीजों में, और मैं फेमस हो गया था वहाँ इस चीजों में। तो वहां से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। इसके हम्म। अलावा मेरे को पता था कि मैं तब काफी लोग बोलते थे मेरे को कि आप इंग्लिश सीख लो, मेरे CFM वाले भी बोलते थे ऐसे जॉब वगैरह कैसे लगी। तब मैंने बोला था वो ठीक है, वो मैं देख लूंगा, वो जो होगा वो ठीक है, देखा जाए। आपको, तो मेरे को लग रहा है ICAI की इलेक्शन लड़ने चाहिए। आप ICAI के प्रेसिडेंट बन जाओ, मेरे को तो लग रहा है यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAI बन जाओ क्या आप? तो क्या है, थोड़ा सा बस ये था। फिर ट्रोल वगैरह से क्या है, थोड़ा सा और मिल जाती है, मतलब एक बार हो राइट। जाते हैं ना, तो फिर लगता है कि चाहे कुछ गालियां दें चाहे कुछ भी दें तो फर्क नहीं पड़ता। एक बार अपन ने गालियां सुन ली अच्छे से, तो फिर फर्क नहीं पड़ता, कोई कितना भी गालियां दे कुछ भी बोले, फिर फर्क पड़ता नहीं है। जब फर्क पड़ना एक बार बंद हो गया है इंसान की, तो हम्म। फिर वो इंसान कुछ भी कर सकता राइट, राइट। है। अगर आप दुनिया को सुनोगे कि यार वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, या कुशाल क्या बोलेगा मेरे को, या ये शरद जी क्या बोलेंगे, साक्षी जी क्या बोलेगी, तो हो गया काम। तो फिर काम हो गया। शरद तो पक्का कुछ बोलने वाला है उसको, जिस हिसाब से BCG बोला है ना कि इंग्लिश जिसको आती है वो BCG चाहता है। तो ये कुछ इंग्लिश ना कुछ तो वगैरह बोलेगा ये। देखिए, देखो अगर आप, मैंने मानता हूँ इंग्लिश तो लोग करते हैं कि कुछ हाई फाई मानते हैं। पहले भी आपको भी पता है, जो इंग्लिश बोलते हैं उनको लोग हाई फाई मानते थे, अरे यार ये तो ये है। पर आपको को पता है इंग्लिश कहाँ की लैंग्वेज, अपनी तो लैंग्वेज है। हम्म। अपनी जो लैंग्वेज है इंडिया की, जो भारत की जो लैंग्वेज है, आपको पता है तमिल तेलुगु, ये है अपनी लैंग्वेज, संस्कृत हम्म। हिंदी। हम्म। तो जब आप इनमें कंफर्टेबल हो, आप आती है आपको, तो ये बोलो ना क्यों इंग्लिश को बीच में लाते हम्म। हैं? जहाँ काम है वहाँ काम ले लेंगे अपन, लिखने वगैरह में चलो ठीक है, अपन ऐसा नहीं है कि फॉरेन की लैंग्वेज है तो इग्नोर करेंगे, जहाँ काम ले लेंगे वहाँ काम में ले लेंगे। हम्म। तो ये है एक चीज, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है कि किसी को खाली इंग्लिश ही आती है। इधर वालों को सबको हिंदी आती है, तमिल वालों को तमिल आती है, तेलुगु वालों को तेलुगु आती है, वो तो आती है। एक वो लैंग्वेज तो सबको ही आती है। तो इस चक्कर में ऐसा कुछ बढ़ावा देने का कोई वो नहीं है। हम्म। तो हम्म। काफी लोग पहले डराते थे, हमको भी डराते थे कि आपको तो इंग्लिश नहीं आती है, जॉब तो कभी लगेगी नहीं। हम्म। काफी बोलते थे आपको तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, जॉब तो नहीं लगेगी, ये नहीं है वो नहीं। मैं बताऊं कि मैं ये बताता हूँ, हमारी अटेम्प्ट में काफी लगभग मेरे 2-4 ऐसे फ्रेंड थे जिन्होंने डम्मी कर रखी थी आर्टिकल, जिनका इंडियन ऑयल में भी सिलेक्शन हुआ है, सब में हुआ है। तो ये जो बातें चलती है ना इंग्लिश वाली, एक डम्मी वाली, देखो डम्मी वाला फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, अगर आप डम्मी करते हो ना, तो आपको दुनिया की नॉलेज नहीं हो सकती कि बाहरी लोग कैसे होते हैं, फर्म वाले कैसे होते हैं, ये कैसे कैसे काम निकालते हैं, क्योंकि ये CA का कॉलेज तो होता नहीं। तो आर्टिकलशिप जरूरी होती है, इसलिए जरूरी होती है कि ताकि आप जान सको दुनिया कैसी है या लोग कैसे हैं। तो इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आज के जमाने में ना। तो आपने आर्टिकलशिप बिग 4 में करी हो चाहे नॉर्मल फॉर्म में करी हो, चाहे आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी हो चाहे ना करी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। और मैंने ये देखा है जिन्होंने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है ना, ज्यादातर लोगों का, सबका बंटाधार हुआ है ज्यादातर लोगों का, मैंने ये हाल भी देखा। हम्म। तो इनसे फर्क नहीं पड़ता आजकल। फर्क पड़ता है आपने
जो ज्ञान दे दिया वो ठीक से दे दिया क्या, बस बाहरी ज्ञान। क्योंकि अगर आप जॉब वगैरह भी करोगे ना कहीं पे भी, बस आपको काम वो सिखाएंगे। 6 महीने ट्रेनिंग देते हैं आजकल, मैंने जिस भी फर्म में देखा है ना, जिस भी कंपनी में 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने खुद का काम सिखाते हैं। सबका अपना अपना काम होता है। तो आर्टिकलशिप का भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आर्टिकलशिप जाना जरूर चाहिए ताकि आपको ज्ञान मिल जाए कि बाहरी दुनिया कैसे होती है। वहाँ ये आपको देखना है कि लोग कैसे कैसे होते हैं। आपको ये काम नहीं देखना कि रिटर्न कैसे बननी है, ये सब हो जाएगा। ये तो कुछ बच्चों के काम है, तो आप खुद भी आजकल जब आपको लैपटॉप चलाना आता है तो आप कर सकते हो ऐसे काम। मेन सीखना है लोगों से बात कैसे करनी है, लोग कैसे कैसे होते हैं, लोग कैसे काम निकालते हैं, या लोगों का मोटिव क्या है, लोग खुद का फायदा कैसे सोचते हैं, जैसे फर्म वाले कैसे खुद का फायदा सोचते हैं। तो ये आपको देखना है, ये सीखना है, क्योंकि दुनिया से मिलना है आपको, क्योंकि आपकी कॉलेज वगैरह नहीं है। राइट, आई एग्री। तो ये सब चीजें जो थी ना, इंग्लिश का, आर्टिकलशिप का, ये सब बातें मैंने जब सीए बना उसके बाद बकवास निकली। खाली मेरे चक्कर में नहीं कि मेरी रैंक बनाई है इसलिए बकवास निकली। मैंने मेरे दोस्तों को देखा जो 40 नंबर पे भी पास हुए, 400 पे भी पास हुए, जो लटक लटक के भी पास हुए, जो 4 4 अटेम्प्ट में भी पास हुए। सबका मैंने देखा, सबका जो एनालिसिस निकला, लास्ट कंक्लूजन यही निकला। जो डम्मी किया उनका भी यही निकला, जिन्होंने बिग 4 में करी उनका भी ये निकला। मैंने तो उल्टा ये देखा, मैंने बताया ना, जिन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी उनका हाल ज्यादा खराब है। तो मैंने आज तक, मेरे पास जिसने भी पूछा कि इंडस्ट्री ट्रेनिंग करें, तो सबको मैंने मना किया, कभी मत करना, आपका एक साल फालतू बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो ऑल्दो आई डिसएग्री ऑन दिस, मेरे को तो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बट मेरा जो मैंने क्या है, मैं तो खाली मेरे दोस्तों का और जो मेरा ग्रुप है उनका बता रहा हूँ, उनका जो एक्सपीरियंस था। खाली मैं मेरे बेस पे नहीं बोल रहा कि चलो मेरी रैंक बनाइए। तो मैंने राइट। उनका जो एक्सपीरियंस देखा, या उनका जो पोस्टिंग देखा है, उनका आज का सैलरी देखा है, पैकेज देखा, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। राइट। तो इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपका, हाँ, बेनिफिट मिलेगा टॉप 10 रैंक का। खाली इंटरव्यू में बेनिफिट मिलेगा। पैकेज ऐसा नहीं होगा कि आपकी रैंक आ गई तो चलो 40 लाख मिल जाएगा, 50 लाख, या पैकेज नहीं होता। सीए को 20 लाख 22 लाख इतना पैकेज मिलता है, ठीक है। और जो कुछ लोग बोलते हैं यार इंजीनियर को तो 50 लाख मिला है, कुछ नहीं मिलता। उनको भी 50 लाख एक आध को मिल जाता है। बाकी अगर आप आईआईटी बॉम्बे इनका पैकेज देखोगे, एवरेज पैकेज 20-22 लाख का इतना, या 20 लाख का इतना रहता है। सीए का आप 14-15 लाख रहने लग गया, उनका 20-22 लाख रहता है। वो भी आईआईटी बॉम्बे वगैरह का बता रहा हूँ मैं। उसमें भी एक दो फील्ड है, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। तो सीए का पैकेज ऐसा नहीं है कि कम है इंजीनियर से, ऐसा कम नहीं। हाँ, ये जरूर है कि पैकेज टाइम टू टाइम जॉब का बढ़ा नहीं है। मतलब आज से 10 साल पहले भी जो पैकेज होता था ना, आज उसमें ग्रोथ आई है, लेकिन ज्यादा नहीं है। इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं आई, ना तो सीए वाली लाइन में आई, ना इंजीनियरिंग वाली लाइन में। तो जो जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा ये पॉइंट ऐसा है कि अब वो ग्रोथ मिला। राइट, आई एग्री। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा डेवलप कर लेना चाहिए। हाँ, एंड मतलब आज के जमाने में मैंने देखे, मेरे सारे फ्रेंड या जो भी हैं, साइड बाई साइड कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं वो। तो जितना वो जॉब में कमा रहे उतना ही वो साइड में कमा लेते हैं। जैसे 15 लाख जॉब में मिल रहे हैं, 15 लाख साइड में कर लिए तो 30 लाख हो गए। राइट। क्योंकि अगर आप बिग सिटी जैसे मुंबई वगैरह में रहते हो तो वहाँ तो खर्चे ही खतरनाक होते हैं। वहाँ तो लाखों में तो फ्लैट मिलते हैं रेंट पे। तो वहाँ की तो 10-15 लाख से काम ही नहीं चल सकता। मतलब चला सकते हो आप, चलाने में तो कुछ भी, किसी में भी चला सकते हो, लेकिन ठीक से अगर आपको जीना है तो थोड़ा सा करना पड़ता है। तो पैसे में आपको देख लेना चाहिए। बाकी जिस राइट। फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसी में जाना चाहिए। ऐसा नहीं चलो टीचिंग में पैसा आया तो चलो टीचिंग में आ जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट जरूरी है। करेक्ट। अगर आपका जॉब में इंटरेस्ट है तो जॉब में जाओ, प्रैक्टिस में इंटरेस्ट है तो प्रैक्टिस हाथ की हाथ पे स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के हाथ ज्वाइन करके तोड़ते हो तो तरीका है, आज के तरीके में इसी तरह से चलता है। और बाकी जॉब में तो ये तो सबको सोच के जाना चाहिए कि आपका सिलेक्शन गारंटी से हो जाएगा। पर वहाँ ये कुछ लोग क्या करते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं इंग्लिश के चक्कर में, और इस चक्कर में वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती मत बोलो, सीधा हिंदी में बोलो या सीधी आपकी लैंग्वेज में बोलो, सिलेक्शन गारंटी से हो जाएगा। मैं तो 4-5 कंपनी के अलावा बाकी सब में आराम से हो जाए। गॉट इट, सही है। देखा है मैंने तो, क्या है, जब इंटरव्यू दिए तो वहाँ ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता था, तो कुछ लोगों को तो इंग्लिश अच्छी आती थी, चलो ठीक है, वो बोल रहे अच्छी भी बात है। तो कुछ लोग टूटी फूटी बोलते हैं, वो टाइम पास करते हैं, मतलब सीख लेते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर टूटी फूटी बोलते हैं। राइट। उस चक्कर में वो रिजेक्ट हो जाते हैं सारे के सारे, उसी चक्कर में होते हैं। अगर आप हिंदी में बोलोगे, एक सामने वाला इंग्लिश परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा है, तो आप उसको मुकाबला कर रहे हो उसके बराबरी का, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, आप हिंदी बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। पर आप टूटी फूटी बोल रहे हो, वो परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा है, तब दिक्कत होती है। अब मैं वहाँ टूटी फूटी अरे इंग्लिश बोलूंगा, मेरे सामने बड़ी बड़ी इंग्लिश बोलेंगे, तो तब बेइज्जती होती है, बेइज्जती भी होती है और दिक्कत भी होती हम्म, है। तो अच्छा, जिस एक बात लैंग्वेज में बताओ, आप एक क्वेश्चन है मेरा। आपके जो आपके, हमने सुना आपकी शादी हो गई है, तो आप और आपके वाइफ में बात बात कौन ज्यादा करता है? आप बात करते हो या आपकी वाइफ ज्यादा बात करती है? वो वो बताओ। करती है, हाँ, वही करती है वही। वही है। सबको पता है ना यहाँ पे आपकी शादी हो गई है? हाँ, वीडियो से मेरे तो पब्लिक कर दिया लोगों ने। अच्छा।
ओके, बढ़िया बढ़िया है। नहीं, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट, ऐसे ही लोग वहाँ पे कमेंट्स कर रहे थे इसीलिए। बट नहीं, थैंक यू सो मच, दैट्स अ ब्रिलियंट पीस ऑफ एडवाइस। बट आपने बहुत सही सही तरीके से एक्सप्लेन किया है, एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग, सो थैंक यू so much for that. Guys, in the interest of time, I'll wait back and I'll take all the questions. Don't worry. But I think panelists have to leave, and of course, you can reach out to them on LinkedIn. Atul sir का तो number भी public है, उनको तो कभी भी message कर सकते हो. He responds to every message, is what he has mentioned, and I'm sure like he'll solve all the doubts. But thank you so much, Sharad, Atul, and Sakshi for doing this, and like it means a lot. And guys, I'll be here to stay back and solve your doubts to all the students. But thank you so much, Sharad, Sakshi, and Atul. बहुत बहुत मजा आया, and thanks a lot for doing this. थैंक यू कुशाल। Thanks. Thank you so much, everyone. And Harshit, it is thoda sa difficult to get into BCG without a rank, but you can still try. Yeah. हाँ, बीसीजी Cool. में रैंक जल्दी Cool. वो रैंकर्स पे बुलाते हैं शायद। Cool, guys. Thank you So so much. thank you so much, Bye. everyone. Cool. So all the students, I mean, I'll stay back and I'll address all the questions that you have for the next 20 odd minutes. So don't worry about that. Apart from that, again, like just one quick announcement to all of you. So we have, like, for all the people who've cleared their CA exams, we've just launched a career Kickstarter program as well, where we are training on group discussion, personal interview, resume building, LinkedIn branding, and all of that. And that is basically going to happen from 5th of February to 14th of February. It's going to happen from 8 p.m. to 11 p.m. And we are going to teach everything right from like we are going to give one-on-one mock interviews also. We are going to give everything about resume building as well. Personalized resume feedback will be taken there. And it's taught by me and one of my flatmates, Manuraj Garg, who is from ISB Hyderabad. And he is going to teach about all the skill sets about GD, cracking GDs and PIs. So I thought that we'll also give you an MBA perspective here, where we'll try to tell you about how do you, let's say, crack your group discussion, crack personal interviews, and all of that. So I'll just quickly share my screen and I'll just show you in terms of what are the offerings. And like you'll also get to know in terms of how will that benefit you. So the objective is pretty simple. When I was joining my job, right? So जब मैं job कर रहा था, तभी there like communication was a big problem, and I feel that this is something which all of us should know. Usually MBAs are preferred in front end roles. If you see in all the jobs as well, MBAs would be given all the front facing or client facing roles. And this is something which I have just a vision which I need to change. So what we have done is that we have divided into 10 days. First 3 days will be group discussion. Next 4 days will be personal interviews. Then 2 days will be resume building, and last day will be building personal brand on LinkedIn, which will be taken by me. And you will also be having an access to a network of like-minded people. Lifetime access to the course recordings will also be given. And the agenda is basically group discussions, like topics like how do you just perform in a GD, like red is the new blue. How do you structure your thoughts? How do you, let's say, give an interview in, let's say, management trainee profile in a private equity finance roles and all of that. And we're also going to give you an interview cheat sheet where we are going to tell you about what questions you can be asked and how do you ensure that you are answering them. And then resume basics, resume advanced, like how do you build a powerful resume, and personalized resume will be given to each and every one of you. And how to build and sustain your personal brand on LinkedIn. How do you reach out? How do you get a job through LinkedIn and all of that? So me and Manuraj Garg are going to teach you everything. Manuraj is from ISB Hyderabad. He has worked at Wells Fargo, and he is also an ex-investment banker. And I am like going to teach on the softer skills, which is LinkedIn branding and all. And apart from that, we are also offering this at 3000 plus GST. So it's happening from 5th Feb to 14th Feb, so 8 to 11 p.m. So the price here is 3000 plus GST, and it's going to be a proper content for 10 days where we are going to walk you through all these modules as well. So it's going to be a very proper soft skills oriented course. That's why I've invited one MBA from ISB Hyderabad, Manuraj. So he is going to help us with all the things which are taught to an MBA, which are not taught to chartered accountants. So if you are someone who's interested to enroll in this, do click on the link which is there in the chat box, and you can register your seats right now. And we'll be starting this batch from 5th of February, which is next Monday, where we are going to teach you on all the software skills and all the topics that are going to help you in order to crack your interviews. So this is something which I just thought I'll share it with all of you and ensure that you're also getting to know about these kind of trainings which we are taking at Kager. And this is something which is really going to be helpful in my opinion. And of course, there's a refund policy as well. If you do not like after 10 days, you can email it to us and you can tell us that you did not like a particular thing, and we'll be happy to give you the refund as well. So this is something which we thought that we'll just share it with all of you. So if you are someone who wants to like know more about soft skills and want to like understand more about how do you crack GD, PI,
LinkedIn branding, resume building and all, feel free to register. And like it's going to be a fun session, very interactive with all of you. And we'll also, like, we're putting our recordings of the previous batch on LinkedIn social media, so feel free to watch the feedback of the students, feel free to watch the quality of the trainings, and rest assured the quality is going to be top notch. Content quality is something which I can guarantee from my side, and that is something which will always be like top notch from our side. Cool. So that's about the Career Kickstarter program. So if you are interested, please do reach out to my team, and please do register for the same as well. We'll be more than happy to have you in the batch. And let's take the questions which are there in the chat box. Any specific questions that you have, please type it in the chat box, and we'll be more than happy to take the questions in the chat box as well. Neeraj is asking, please guide us how to become a guitarist while doing a CA. All right. So I think that's a fun question. So I mean, you should just join guitar classes and practice every day for half an hour. I think that is something which will help you to become a guitarist. Kavi Priya is asking, is getting all India rank after few attempts have advantage on package? If so, single digit rank have preference over other? No, all ranks have equal weightage. There is nothing like single digit rank will have more weightage, trust me. And is getting AR after few attempts, does it have advantage on package? Yeah, if you have all India rank after, let's say, 2 attempts, you will get good packages. And like it won't matter if you have 1 attempt or two attempts. So one of the persons, like Shelly Chaudhary, she got AR1 in the second attempt, not in the first attempt. Still, she's at a very good package. Mohit is asking, will it help in interview preparation? Definitely. So basically, that's the main objective of this course, Mohit. It is going to help you in interview preparation. It's going to help you in group discussion, personal interviews. How do you answer? How do you like negotiate and all of that? So we are going to teach you on each and everything. So like the content which is going to be designed, right? It's already designed, and we are going to train on all the topics of GDPI. And after this, like, you will get to know that you have become better in communication and speaking. So that is something which we are going to imbibe in all of you, and that is something which I am also going to ensure, and Manoraj, who's going to be the other trainer, is also going to ensure, where we are going to teach you all the things related to GDPI, resume building, LinkedIn branding, and all of that. So definitely it is going to help a lot in interview preparation. And once again, you can check out the recordings of our past sessions on LinkedIn, and you'll get to know the quality of the content that we have. It's like top notch, and trust me, like I don't think there's any better content quality, because I've got an MBA from ISB, and I myself am going to teach, and I'm going to ensure that everyone is going to love what is going to happen. Let's take the next question. Sir, is recording of today's session going to be available? Yeah, of course, it's going to be available on YouTube. Don't worry about that. Let's take the next question. Hello, sir. I've taken 4-5 attempts. How will I get good job in MNC? Saurabh, so don't worry. Like, it's fine if you have taken 4-5 attempts. You will be able to get a good job, provided that you are able to crack interviews and get an interview shortlist. It's all about creating that nice resume. It's all about sending a good cover letter. It's all about sending a proper LinkedIn connection request to the HR. That will help you get a good job in MNC. And then your technical knowledge is of course good, because you have cleared your CA, and automatically you will be able to get a good job as well. As you are a ranker as well, can you guide me for final group 1 preparations? Yeah, sure. So group 1, I think, just focus more on modules, and ensure that you are solving practical sums on a piece of paper. For theoretical subjects, just ensure that you are trying to memorize it and doing it in the morning. That is something which will help you in the group 1 preparations. Harshnath is asking, okay, please share your number also, so that we can connect with you personally. So Harsh, I can share my email ID. It's kushal@kegel.club. Request if you can share it, all your doubts on email. I'm responsive on emails as well. kushal@kegel.club. Bhavya is asking, guide on communication improvement. I'm a CA inter student pursuing articleship as well. So Bhavya, I think it's very important for you to ensure that communication skills are something which are mandatory to improve. So like, this course would be perfect for you, the Career Kickstarter program which is there. Make sure to register for that. Apart from that, I would recommend that start speaking to your friends in English, start speaking to yourself in English. Go in front of a mirror, talk to yourself for 2 minutes, record your own videos for 2 minutes, see कि कौन से second पे fumble हो रहा है, and automatically you will get to know that okay, you are improving day by day. So that is something which I would recommend for communication skills. And apart from that, I think like watch some podcasts, read a lot. That is something which will be helpful. Harish is asking, 7 attempts make companies filter for rejection. See, I'll tell you honestly, some companies prefer first attempt candidates, but there are good companies which will hire even after few attempts, so that is not a problem. It's just that कुछ companies बहुत ऐसे ये होते हैं कि उनको मतलब first attempt में ही चाहिए होता है, so that will be a problem there. Let's take the next question. Is getting an AR necessary for companies like BCG? Yes, actually that's the harsh reality कि rank आया तो ही तुमको BCG में जाने मिलेगा, नहीं तो बहुत difficult होगा. Tehzeeb is asking how to start a journey as a content creator. Okay, so as a content creator, it's like you have to like
find a niche कि okay तुम्हारी expertise क्या है, तुम्हारी capability क्या है, and then you will be able to become a content creator. Once you're able to find that niche, start creating content, start adding insights, start adding value, and automatically you'll be a good creator. Start from LinkedIn. I think LinkedIn is very simple to start off with, because that is something where you will be able to just share your thoughts and opportunities. And apart from that, then Instagram and YouTube is slightly difficult, because Instagram and YouTube पे क्या होता है कि video content होता है. So I think that is little difficult as compared to LinkedIn. Okay, I have three-part questions by Divyansh. What are some additional courses to add to CA? I think CFA is something which you can do. Apart from that, you can ensure that you're doing something like a CFP or a CMA. That is also a good option. ACCA is a good option. Apart from that, you can enroll for our courses like Career Kickstarter programs. It will help you to develop the softer skill side of the aspect as well. And these are some of the courses which I think you should pursue. In fact, we are also launching courses of Advanced Excel and Financial Modeling. 15 February तक ये launch हो जाएंगे. If you are someone who's interested to pursue these courses also, please make sure to enroll for these courses as well, and let me know in the chat box which are some other courses which you would want us to launch, so that we'll keep launching them as and when we get the bandwidth and time for all of you. Qualified as a CA in November 23, working as a senior consultant. Should I switch to another profile offering higher CTC? I think yes, you can switch. It's a personal interest. CTC से अलावा just focus on कि क्या interest है. That'll be helpful. Apart from मतलब कि just CTC के अलावा मतलब it's like your interest in IDT or your interest in valuations. What is more interesting to you? You should do that. I would be sitting in campus. We made 24 candidates, so a lot of time at hand. How to utilize this time to maximum efficiency to be job ready. Again, I think Divyansh, you can enroll for the Career Kickstarter program. I think that would be more productive utilization of time. It's at 3,000 plus GST only, and you'll be able to get a very good productive time in terms of having that access to the community, improving your communication skills, improving your softer skills of the aspect as well. So that is something which will happen in those sessions. Neeraj is asking which are the companies a person can go in a job by doing articleship in valuations profile. You can get into boutique investment bank, you can get into management consulting, you can get into FDD roles, financial due diligence, you can get into FP&A role, which is financial planning and analysis. All these roles will get open for you. Which management consulting firm takes CS without a rank? A lot of them, tier 2 management consulting firms, even Deloitte, KPMG, EY will take you without a rank. Then even boutique consultancy firms will take you without a rank. So that is something which you can apply for. How to improve vocabulary, Abhay Chaturvedi. So I think you should start watching or like watching English videos, start reading English books. That will help you to improve your vocabulary. Let's take the few of the last questions. Thank you, Kushal. This was very helpful for us. Can't wait for tomorrow's session. Oh yeah, by the way, guys, tomorrow we have one more webinar, CS into PE, VC, IB consulting. So make sure that you are registering for those webinars also, which we are taking. Let's take the next question. Muskan is asking, I'm not able to decide how to start preparing for interviews. I'm currently studying FR. Okay, I have 1 year experience in PwC. I'm not able to find my interest. See, I'll tell you, Muskan, it's like interest is going to be there once you only get, like, once you experiment with a lot of things, I feel. So interest, you will be able to decide once, like, you have experimented with a lot of things. So that is something. How to start preparing for interviews? I think I have mentioned about the Career Kickstarter program already. You can like enroll for that to prepare for your interviews, where we'll train you in and out about GDPI and all of that. And we are also doing one-on-one mock interviews with all the people who have registered. We have like tied up with mentors who are working in a big companies, and they are going to take mock interviews. And apart from that, if you are currently studying FR and all, I think you can, of course, like you can focus on studies, finish the CA exams first, and then you should prepare for your interviews. So that is something which you should do. Is CA enough to get a good package? I think yes. ICI's average campus placement package is 9 lakhs per annum. So I think CA is enough to get a good package. If like 9 lakhs is a good amount of money, so that is something which you can do for sure. Let's take the next question. Akib is asking, I became CA and a father on the same day. Oh wow, that's amazing. Heartiest congratulations. I have my family business and willing to expand. How do I start? Do I need to improve my personal branding? Yes, I think you should improve your personal branding in the sense that LinkedIn पे active होना सीख लो. LinkedIn is something which is going to help you in your personal branding journey, which I'm going to teach myself in the Career Kickstarter program happening on 5th Feb. And that is something which is going to help you definitely for your business as well. So make sure that you are improving your personal brand, which will be on LinkedIn first, and then Instagram and YouTube. YouTube and Instagram are difficult. LinkedIn पे भी हो गया तो बड़ी बात है. So LinkedIn पे start creating content, start adding value, start posting relatable thoughts about your challenges, your failures and all. And that will add a lot of value, honestly.
Mona is asking, please tell me about the ACCA course. So quickly about ACCA, CA के बाद तुमको 9 levels exempt होती, 4 ही levels देने पड़ते हैं. 4 papers में से भी 3 papers are subjects of CA final only. 20,000 rupees on an average per subject होता है registration fees. And ideally you won't need to study a lot if you have cleared your CA. ACCA का advantage वो है कि you can get good opportunities in UK, US also. It's recognized in more than 160 plus countries. And apart from that, if you want international clients in the future, ACCA is a good course, especially United Kingdom. Let's take the next question. Rohit Sharma. Oh, wow, Rohit Sharma is here. Can I enroll for CFA as I have graduated externally with my CA? Yeah, of course you can enroll for CFA for sure. Even if you have graduated from external correspondence, it's absolutely fine. मैंने भी correspondence से ही किया था, फिर उसके बाद CFA किया था. You can enroll if it interests you, of course. So वो भी कर लेना. Let's take the next question, sir. अगर हम CA के साथ CS भी करते हैं तो what the benefit? So honestly बताओ तो CS का इतना benefit नहीं है, मतलब in the sense that compliance related work होता है. So if you are interested in compliance, board resolution कैसे draft करते हैं, minutes कैसे draft करते हैं and all of that, then CS is a good option. Anas Khan is asking, can you differentiate between CA and CMA and which is better? So इस पे मैं reel भी बना रहा हूँ, by the way. Good question. So CA and CMA में basically क्या है कि CMA is certified management accountant. तो अभी तो basically इसका scope broaden हो गया है, US CMA जो है. And इसमें मतलब like इंडिया का जो CMA right, उसमें basically आपको cost accounting, costing related बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी. So if you are someone who's interested in costing, SCMP, which is the subject, then CMA is the course for you. एवरेज पैकेज उसका 6-7 लाख के आसपास होगा. अगर आपने सीए नहीं किया तो सीए का एवरेज पैकेज 9 लाख होगा. ठीक है. Cool guys, so I think that's it from my side. Let me know if there's anything else, and I'll look forward to having you in our career Kickstarter program, which is there. So please make sure that you are registering for the career Kickstarter program as well, and please feel free to refer it to your friends as well. We have kept the price as 3,000 plus GST, and it's a proper 10 days program where MBA is also going to teach you and I'm also going to teach you. So please make sure that you are spreading the word, helping us as well, like just by spreading the word, and trust me, the quality is going to be top notch. You won't regret at all about the decision of enrolling in this course, and trust me and mark my words. So have that faith in me. And of course, if you don't like the quality, we always have the refund option. So help us with that as well. Pass out, like maybe share the link and share this link of the career Kickstarter program with your friends, which will help us also in order to get the students. And apart from that, if you like this webinar, if you found it insightful, please share it on your social media, tag us on LinkedIn, tag us on Instagram, and we'll be more than happy to engage on these social media platforms. It will also help us to create more awareness about these webinars for future students as well. Make sure to come tomorrow. If you have not registered, register for our tomorrow's webinar, which is CAs into PE, VC, IB consulting. So I'll see you tomorrow as well, 11 a.m. to 1 p.m., where we have called 4 speakers, one from PE, one from VC, one from IB, and one from consulting, and you'll have like amazing insights in tomorrow's session as well. So thank you so much once again, and I hope you enjoyed, and please do share it on the social media handles, and please do share the link of Career Kickstarter program with all your friends, and I can't wait to see all of you in that batch, and can't wait to interact with all of you in that batch itself. Perfect. Thank you so much, guys. Bye. Good night.